Okay, so first of all, tell me if you have any doubt in the yesterday session or any doubt in the previous 3 sessions. If you have any doubt, you can ask me. Then I will proceed. Anybody? Nobody is getting a chance to revise the things. Okay, yesterday we talked about the methods. Okay, so yesterday we talked about the methods. Today I'm going to tell you about a special method. Okay, so Rabia, you got a chance to revise the session, yesterday's session. I'm audible. Say yes or no. Yes, sir, you are. Yes. So nobody have revised, so nobody is going to respond me. Okay. Okay, so here I'm just going to tell you one thing here. Let me remove this part first of all, then I will come to. So yesterday I told you very important thing that whenever you are going to create a structure of a class, only 2 things are in a class. What 2 things? One is properties and second thing is functions. Yes or no? Yes. Okay, so now when you have 2 things, one is properties in a class and second possibility is function. Only 2 things are there. And yesterday I told you how you can make a differentiation whether this is the name of a property and this is the name of a function. You will see that when there is a name of the function, always function name is, you can say, suffixed by this bracket. Are you getting my point? You can see you are declaring a function add, then you will see you are going to use this bracket. And the same thing happen when you are going to call a property or you are going to call a function. I will give you the example. Suppose take the example. This is the property of a student class and this add is the function of this class. So in the file class, I want to use these 2 properties and these few functions. So I'm going to create the object of this class. Is it okay? सबको पता है किसी भी क्लास की चीजों को यूज करने के लिए we have to create the object. Yes or no? Yes, yes. So I have created this thing, student stu equal to new student. When I created the object of this class, then only I can access the properties and functions. Stu dot. You can see I can access the properties, student name, student roll number, as well as I can call the functions. Okay, you can say you are able to call the functions and how you are able to understand this is a function because you can see in a student name, student roll number. In student name and student roll number, you are not able to see the bracket, but in the add, in the division, you are able to see this bracket, which contains some parameter. Yes or no? Yes. And I have also already shown you one thing that suppose I am writing a code. Suppose I am writing a code to call this function. So I'm passing the parameter 5 and I'm passing the parameter suppose 3. So when I run it, so it will give me the result. Addition 8. And I also told you that how it is going to work at runtime. Runtime पे कैसे काम करता है? First of all, always the coding start, or you can say the execution of the program start from main method. So the control will go to the main method. First of all, it will run this line. And what is the impact of this line? It will create the object in the memory and it will create a reference. With the help of this reference, in the next line, you are calling the function. So when you call this function, what will happen? I told you yesterday, press the control key and click on add function. So at runtime, it will go to this function and execute all the lines within the function and then come back to here. Is it okay? किसी को कोई doubt है इसमें? No, sir. तो आपने एक चीज देखी इधर, when I click on add function, where control is going? Control is going to the student class because this function is available in the student class. Now I am going to tell you very special thing. If you see the line number 7, अगर आप line number 7 में ध्यान से देखो, so in line number 7, right side, I told you I am creating the object. Yes or no? New Yes. student, I am creating the object of a student class. But if you will focus on this particular thing, it is saying that student and is after student, you are able to see a bracket. Yes or no? Yes. So it assumes that there should be some function with the name of a student. Yes or no? क्योंकि मैंने आपको बताया है
कि in your class only two possibilities are there. There should be a property or function. And how you identify a function? कि function is always suffixed by a bracket. तो यहाँ पे देखो जैसे add function को कॉल किया, you are calling the add function, you are using this bracket. तो यहाँ पे भी स्टूडेंट के बाद क्या लगा है? ब्रैकेट. इसका मतलब कहीं ना कहीं ये फंक्शन होगा. यस और नो? Yes. तो अब देखते हैं कि क्या इसमें इट इज ऑल्सो फॉलोइंग द सेम थिंग. लेट प्रेस द कंट्रोल बटन एंड क्लिक ऑन स्टूडेंट एंड जस्ट एवरीबॉडी विल टेल मी वेयर द कंट्रोल इज गोइंग. कंट्रोल प्रेस, क्लिक ऑन स्टूडेंट, वेयर द कंट्रोल इज गोइंग. Student class. Yes, you can see in the same way as I'm clicking on the add function, the control is going into the student class, and not only in the student class, actually in the student class it is going to a particular function also. But when I'm clicking on this student, it is also going into the student class. Control is going to the student class, but it is not going to a particular function student. Yes or no? Yes or no? Yes, yes. But it proves one thing. ये एक चीज को प्रूव करता है क्या? Because I'm clicking on student this one and control is going to here, it means definitely there is some function in this class with the student name. हम उसे फाइंड नहीं कर पा रहे हैं, लेकिन वो इस क्लास में तो आया है, इसीलिए वो यहाँ पे क्या कर रहा है? It is passing the control. तो यहाँ पे फंक्शन नहीं है. अगर ये नहीं होता तो it should give the error. Yes or no? अब देखो, I can take the example. Add function is not giving the error because it is present in the student class. Let me comment this function. इस function को comment कर दो. This line is giving error. Yes or no? This line is giving error. Yes or no? Method is identified. Yes. Why it is giving the error? Because this time this add function is not available in the student class. That's why in the pile class at line number 9 it is giving the error. Now again go and uncomment it. जैसे मैंने uncomment किया, why it is not giving the error? Because it is able to find this function. Same thing is happening with student कि जब मैं when I'm clicking on the student, it is actually able to find this function. तभी तो error नहीं दे रहा है. यहाँ पे error भी नहीं दे रहा है और control जा रहा है. इसका मतलब function यहाँ पे है. That is another thing that we are not able to see it. हम उसे देख नहीं पा रहे हैं. तो यहाँ पे you will learn a special thing that every class contains a special function. Every class contains a special function. The name of that function is same as the name of the class, and that function is known as constructor. Getting my point? क्या होता है constructor? हर क्लास में एक फंक्शन होता है. हर क्लास में बाय डिफॉल्ट एक फंक्शन अवेलेबल होता है और फंक्शन का नाम वही होता है जो आपकी क्लास का नाम होता है, और इस स्पेशल फंक्शन को हम क्या बोलते हैं? कंस्ट्रक्टर. गेटिंग माय पॉइंट? यस और नो? Yes. अब आता है बात कि इस स्पेशल फंक्शन का पर्पस क्या है. The purpose of this constructor or the purpose of this special function which is known as constructor to create the object in the memory. मैंने आपको in the first session I told you about the whole story कि कैसे जब आप ऑब्जेक्ट बनाते हो तो मेमोरी में कैसे एक ओवल कलर का मैंने ऑब्जेक्ट बनाया. then I show you that how it initialize the property, something like that. तो वो काम होता कैसे, कौन करता है? That whole work is done within this function. Getting my point? Yes or no? Yes. तो वो सारा काम होता है इस फंक्शन के अंदर. इस फंक्शन को बनाया सिर्फ इसलिए गया है, द ओनली पर्पस ऑफ दिस फंक्शन इज टू क्रिएट द ऑब्जेक्ट इन द मेमोरी, ताकि ऑब्जेक्ट मेमोरी में बने, उसमें आपकी सारी प्रॉपर्टी जो ये सब असाइन होती थी, स्टूडेंट रोल नंबर, स्टूडेंट नेम, एवरीथिंग शुड बी सेट इन द मेमोरी. तो वो काम बाय डिफॉल्ट इट इज डन बाय द जावा. ठीक है. अब नाउ क्वेश्चन इज दैट एवरीबॉडी विल टेल मी कि प्रदीप कैसे मैं मान लूं, हाउ आई कैन एज्यूम दैट यू आर सेइंग द राइट थिंग. चलिए मैंने एक चीज मान ली, because it is not giving the error at line number 7. इसका मतलब ये स्टूडेंट फंक्शन कहीं तो है. Now you have proved it when I click on it. Control is going to the student class. इसका मतलब स्टूडेंट क्लास में भी है. ये ढूंढ नहीं पा रहा है, लेकिन हम कैसे ट्रस्ट करें? तो सबसे पहले आप देखना, मैं इस लाइन को रन करूंगा. When I'm trying to run this class, are you able to see any output in the console? कोई कंसोल में आउटपुट आ रहा है? No. नहीं आ रहा. Now I will do one thing. You are not able to see this function in the student class. तो मैं आपके लिए खुद बनाता हूं. देखो, मैं एक्सप्लिसिटली इसको बना रहा हूं क्योंकि मैं आपसे बोल रहा हूं उसके अंदर होता है, लेकिन आप बिलीव कर नहीं रहे हो. तो एक काम करते हैं, मैं आपके लिए फंक्शन खुद बनाता हूं. स्टूडेंट इस नाम से फंक्शन बनाता हूं और इसको फंक्शन के अंदर मैं एक एसओपी लिखता हूं.
Why I'm writing the SOP? So that you can understand that this function is really the same function which I am talking about. So I am writing, कुछ भी लिख सकते हैं. You can say student constructor. I'm just writing this message. Yes, anybody asking any question? ठीक है, चलिए अब मैं आपको एक चीज दिखाता हूं. मैंने ये किया. सर 1 मिनट सर, एक बार आप रिपीट कर देंगे, मतलब आप ये क्या बता रहे हैं? हाँ, so I'm telling this thing that what happens that every class, yesterday I talked about the functions in the class. Today I'm telling you that every class contains, by default contains a function, default function, and that function is known as constructor. And the purpose of that function is to create the object in the memory. तो जब भी मैं आपका कभी बोलता हूँ कि I want to create object in the memory, मैं ये लाइन लिखता हूँ. Yes or no? मैं जब भी ऑब्जेक्ट बनाता हूँ, तो ये जो करता हूँ, what I'm trying to do actually, this line of code which I'm saying that I'm trying to create the object, actually I'm calling a function student, and for calling this function I'm using a special keyword that is called new. तो अगर मैं इसको यहाँ पे थोड़ी देर के लिए हटा भी दूं, आप देखो रेफरेंस को हटा दो. So this line, what this line is doing, it is creating an object in the memory. तो कैसे करता है? I am trying to call a function student. अब ये student function होता कहाँ है? ये student function, the name of the student function is always available in the student class. When I click on it, अब बताइए मुझे कंट्रोल कहाँ पे दिख रहा है आपको? Where you are able to see the control this time? In the student class on this particular function, yes or no? सर तो आप बोल रहे हैं कि जैसे क्लास है, तो क्लास का बाय डिफॉल्ट एक फंक्शन है जो क्लास के नेम से है. अगर वो तो आपने कंस्ट्रक्टर के अंदर लिखा है पब्लिक स्टूडेंट ब्रैकेट, अगर हम नहीं भी लिखेंगे तो बाय डिफॉल्ट इट इज कंसीडर कि देयर इज वन फंक्शन विद द क्लास नेम स्टूडेंट. Yes, exactly. I can prove it. Second thing, आपको देखो ये एम्प्लॉय क्लास है, yes or no? है? इसमें कुछ भी नहीं लिखा है. It contains only some properties and variables. Yes or no? Yes or no? यस सर. चलिए अब एक काम करते हैं, इसके अंदर कोई फंक्शन नहीं है. इन माय पायल क्लास आई एम राइटिंग अ कोड. जस्ट सी न्यू एम्प्लॉय. एम्प्लॉय में कोई फंक्शन नहीं था. स्टिल आर यू एबल टू सी अ सजेशन? सजेशन दिख रहा है एम्प्लॉय, मूवीज बॉलीवुड एक्शन एम्प्लॉय के अंदर दिख रहा है. यस और नो? नाउ क्लिक ऑन इट. देखना कंट्रोल, वेयर द कंट्रोल इज गोइंग. कंट्रोल कहां पे जा रहा है? कंट्रोल इज गोइंग एम्प्लॉय क्लास. इसका मतलब now not only this thing, every class contains by default a function and the name of that function is same as the name of the class and this function is known as constructor. ठीक है, तो कोई भी आपके सामने देखो, मैं एक नई क्लास बनाऊंगा, उसमें कुछ भी नहीं बनाऊंगा, कुछ भी नहीं. क्लास, आई एम टेकिंग द एग्जांपल ऑफ, लेट मी टेक द एग्जांपल ऑफ राबिया, RABIYA. मैंने राबिया बनाया, इवन आई एम नॉट मेकिंग अ मेन फंक्शन. फिनिश. कुछ भी नहीं है. राबिया के अंदर ना, राबिया डू नॉट कंटेन एनी प्रॉपर्टी, राबिया डू नॉट कंटेन एनी फंक्शन. बट इफ यू ट्राई टू क्रिएट, कॉल द ऑब्जेक्ट, ट्राई टू क्रिएट द ऑब्जेक्ट ऑफ राबिया, यू कैन डू इट. व्हाई? बिकॉज यू आर कॉलिंग द कंस्ट्रक्टर. अब ये देखो राबिया में लिख पा रहा हूँ, ये फंक्शन कैसे लिख पा रहा हूँ? बिकॉज दिस इज अवेलेबल इन द राबिया क्लास. बाय डिफॉल्ट इंडिविजुअल फॉर्मेट में ही होता है. ये देखो, आर यू एबल टू सी? यस और नो? इट इज ओके? यस और नो? यस सर. अब आपको ये प्रूफ करने के लिए फंक्शन इनविजिबल फॉर्मेट में होता है, तो आप मेरी बात तो मानोगे नहीं. तो मैंने एक काम किया, ये किया, आई हैव डन वन थिंग, बिकॉज बाय डिफॉल्ट जावा प्रोवाइड दिस फंक्शन इन एवरी क्लास. मैंने उसको दिख नहीं रहा था, आपको खुद लिख के क्या कर दिया? दिखा दिया. अब इससे क्या प्रूफ किया? देखो, बिफोर इट व्हेन यू आर क्लिकिंग ऑन द स्टूडेंट, द कंट्रोल वाज गोइंग टू द स्टूडेंट क्लास. क्लास पे तो जा रहा था, लेकिन किसी इस फंक्शन पे नहीं जा रहा था, क्योंकि ये फंक्शन वहां पे उसे दिख ही नहीं रहा था. आर यू गेटिंग माई पॉइंट? यस और नो? Yes. अब मैंने बना दिया है, तो देखो ये इससे यहाँ पे कंट्रोल ले जा रहा है. और एक और चीज प्रूफ करता हूँ. लेट मी रन दिस क्लास. अगर मैं इस क्लास को अब रन करता हूँ, सो हियर आई हैव रिटन द कोड टू न्यू स्टूडेंट. न्यू स्टूडेंट, अगर ये फंक्शन वाकई रन करेगा, तो क्या ये प्रिंट होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए? यस और नो? Yes. Print होना चाहिए. तो ये देखो, आई एम गोइंग टू रन इट एंड यू विल सी दिस इज द सेम फंक्शन. इट इज प्रिंटिंग. यस और नो? Yes. तो इसका मतलब ये प्रूफ हो गया कि हर क्लास में, एवरी क्लास कंटेन्स बाय डिफॉल्ट अ फंक्शन and the condition is that the name of that function is same as the name of class, and this function is known as constructor. And what is the purpose of this function? To create the object in the memory, जिसको हम मेमोरी में देख नहीं पाते, उस ऑब्जेक्ट को बनाने का पूरा काम ये कंस्ट्रक्टर ही करता है.
Is it okay? सर एक डाउट है, जैसे मतलब पहले बहुत पहले पढ़ा था, तो कंस्ट्रक्टर एक्सप्लिसिटली क्यों बनाते हैं फिर, मतलब व्हेन देयर इज बाय डिफॉल्ट कंस्ट्रक्टर इन द क्लास? पहले तो मैं आपको सबसे पहले बताऊं कि बाय डिफॉल्ट द थिंग इज दैट जैसे आपका क्या होता है, यहाँ पे कंस्ट्रक्टर मैंने यहाँ पे जो बनाया हुआ है, अगर आप केवल नॉर्मल एक ऑब्जेक्ट बनाना चाहते हो, फॉर एग्जांपल जैसे स्टूडेंट की बात करें, तो आपने पहले तो ये जस्ट अंडरस्टैंड दिस थिंग, दिस इज कॉल्ड द ऑब्जेक्ट, और लेफ्ट साइड में हम क्या बनाते हैं, इसका रेफरेंस। क्योंकि प्रोग्रामिंग में अगर आपको, इफ यू वांट टू पॉइंट दिस ऑब्जेक्ट, अगर प्रोग्रामिंग में आपको इस ऑब्जेक्ट का रेफरेंस चाहिए, मतलब इस पे काम करना है, यू ऑलवेज क्रिएट अ रेफरेंस। दिस इज क्लियर दैट STU इज अ रेफरेंस, यस और नो? ये एक रेफरेंस है which is pointing into the memory. This is clear or not? Yes. Yes. ठीक है, तो ऑब्जेक्ट जो मेमोरी बनता है, अगर आप मेरा फिर से फर्स्ट वीडियो देखोगे, अगर आपने मान लो फिर से रिवाइज करना, यू विल सी द फर्स्ट वीडियो, देन यू अंडरस्टैंड दिस थिंग कि ये मेमोरी में ऑब्जेक्ट बनाता है एंड इट क्रिएट द रेफरेंस। ठीक है, अब नाउ द थिंग इज दैट समबडी आस्क्ड मी कि प्रदीप अगर इसमें ये फंक्शन होता है तो हम कभी कभी एक्सप्लिसिट क्यों बनाते हैं? दैट इज वेरी वेरी गुड क्वेश्चन। ठीक है, तो यहाँ पे तो मैंने आपको समझाने के लिए बनाया है, अगर मैं इसको बनाऊं या ना बनाऊं, इस कोड पे कोई फर्क पड़ेगा? टेल मी यस और नो। अगर मैं इसको देखो यहां से हटा भी देता हूं Ctrl+X, तब भी मेरे हटाने के बाद भी बाय डिफॉल्ट ये फंक्शन यहाँ पे है। दैट्स व्हाई यू आर एबल टू सी इट इज नॉट गिविंग एनी एरर, इट इज रनिंग फाइन। यस और नो? हाँ जी, यस और नो? Yes, yes. I can write the further line of code stu dot student roll number, मैंने लिखा है देखो 5, then I'm writing stu dot student name, I'm writing here, suppose take the example of Pradeep, बना दिया मैंने object, this is working fine. Now tell me one thing, who asked this question that why we always try to, why most of the time we try to create a explicit constructor? Who asked this question? I asked. Okay, Rabia. Rabia, great. So Rabia, what happens now? Tell me, here you will see I have created the object in line number 10. Yes or no? This is for first statement, because I told you one statement is completed when it identifies semicolon. Yes or no? Yes. So you will see it has created the object in line number 10. Then in the next instruction at line number 11, it assigned the value 5 to the student roll number. Yes or no? In the second line. Is it okay? Yeah. And in the next line, it actually assigned the value Pradeep to the student name for that object. Yes or no? Yes or no? Yes. So what happens? Actually, to creating an object and for assigning the properties, student roll number and student name, even you can say you can assign some more property. Dot. Take the example. I think school name is also there. School name equal to suppose ABC. तो यहां हमने क्या किया, 3 प्रॉपर्टी एक ऑब्जेक्ट को बनाया और 3 प्रॉपर्टी असाइन की. सो हाउ मेनी लाइंस ऑफ कोड आई हैव रिटन? 4. यस और नो? यस और नो? Yes. तो हमने यहाँ पे क्या काम किया, देखिए पहले ऑब्जेक्ट बनाया है, फर्स्ट आई क्रिएटेड द ऑब्जेक्ट, उसके बाद नेक्स्ट लाइन में हमने वैल्यू असाइन की रोल नंबर को. In next instruction, I assign the value to student name, then I assign the value for the school name. हम ये काम एक ही लाइन में भी कर सकते थे. हम ये लाइन क्या कर सकते थे? We can perform the same thing in one line. और उसको क्या बोलेंगे? आपने यहाँ पे you created the object, then you assign the values in further lines. आप चाहो तो ऑब्जेक्ट बनाते समय भी वैल्यू को क्या कर सकते हो? असाइन कर सकते हो. Are you getting my point? Yes or no? Yes. So, Pradeep, I have one question. Yeah. Actually, जैसे हमने ऑब्जेक्ट बनाया, जैसे स्टूडेंट न्यू स्टूडेंट करके ऑब्जेक्ट बनाया, देन जो स्टूडेंट करके जो ब्रैकेट में वी कैन कॉल ऊपर जो न्यू स्टूडेंट, हाँ जी, राइट साइड, तो हम ये स्टूडेंट जो ब्रैकेट में उसको एज ए कंस्ट्रक्टर बोल सकते हैं. हाँ, ये कंस्ट्रक्टर ही है, ये वाला जो पार्ट है एक्चुअली ये कंस्ट्रक्टर ही, क्योंकि इसका नाम और कंस्ट्रक्टर की एक खासियत होती है. आप जब भी किसी फंक्शन को कॉल करते हो, देखो स्टूडेंट के अंदर कोई फंक्शन कॉल करना है तो SU डॉट करके आप ऐड लिख रहे हो, कर रहे हो. Yes, yes. तो किसी फंक्शन को कॉल करने के लिए यू नीड ए रेफरेंस और ऑब्जेक्ट. यस और नो? Yes. तो आपको अब मेरे को यहाँ पे सबसे बड़ा बहुत फनी एग्जांपल आपको देता हूँ. इसमें एक बहुत फनी एग्जांपल होता है कि एक क्वेश्चन पूछा जाता है, इस दुनिया में
मुर्गी पहले आई कि अंडा? यस और नो? बहुत फनी Yes. क्वेश्चन है, एंड दैट Yes. इज द फैक्ट. अब आप मुझे बताओ, इफ यू वांट टू कॉल द प्रॉपर्टीज और फंक्शंस ऑफ ए क्लास, यू फर्स्ट ऑफ ऑल नीड टू क्रिएट द ऑब्जेक्ट. यस और नो? Yes. और ऑब्जेक्ट अपने आप में क्रिएट करने के लिए यू हैव टू कॉल ए फंक्शन दैट इज कॉल्ड कंस्ट्रक्टर. तो Okay. किसी फंक्शन को कॉल करने के लिए आपको ऑब्जेक्ट चाहिए, और ऑब्जेक्ट बनाने के लिए खुद आपको एक फंक्शन कॉल करना है. दैट्स व्हाई जावा प्रोवाइडेड ए स्पेशल वे टू कॉल दिस फंक्शन, एंड दैट इज कॉल्ड न्यू कीवर्ड. आप इस स्पेशल फंक्शन को कॉल करने के लिए न्यू कीवर्ड का यूज करते हो, तब जाके फंक्शन कॉल होता है और आपका मेमोरी में क्या बनता है? ऑब्जेक्ट. Object बनता है. तो यहाँ पे अब यहाँ पे एक बार ऑब्जेक्ट बन गया, तब आपने देखो उस ऑब्जेक्ट या रेफरेंस से बाकी चीजें कॉल कर ली. यस और नो? Yes. तो इसीलिए है ये भी फंक्शन, लेकिन इसको कॉल कैसे किया जाए, क्योंकि वही कहानी हो गई, पहले मुर्गी पहले अंडा. तो आपको कहीं ना कहीं इनिशियल स्टेज डिसाइड करनी पड़ेगी, पहले कौन आया. तो पहले सबसे पहले माना गया कि ऑब्जेक्ट आया. तो ऑब्जेक्ट भी एक फंक्शन था, लेकिन इसको कॉल कैसे किया जाए, ये भी एक फंक्शन है, सारे फंक्शन के रूल को फॉलो करता है. लेकिन ये पहला फंक्शन होगा, तो उसको कॉल कैसे करें? तो इट हैज गिवन ए स्पेशल ट्रीटमेंट दैट इट कैन बी कॉल्ड विद द हेल्प ऑफ न्यू New. कीवर्ड. एक बार ऑब्जेक्ट बन गया, एक बार मुर्गी बन गई, उसके बाद ये जो उसका अंडा आया है स्टूडेंट, using this you can call other thing, even you can call other functions. Yes or no? Yes. Now this thing is clear? Yes. एक ठीक है. डाउट बिल्कुल. सर, डाउट जब हम लोग ये लाइन लिखते हैं स्टूडेंट STU इक्वल टू स्टूडेंट ब्रैकेट, हाँ. सर STU इज द रेफरेंस है ना? STU is a reference, yes. Reference. हम create करते हैं. ठीक है. फिर मुझे ये डाउट है, इसमें फिर एक जो हम बोलते हैं कि हम we created one object, तो what is the object? हाँ, ये Because मैंने पहले मेरी अंडरस्टैंडिंग क्या थी कि STU is the object what we created in this line, but STU is a reference. हाँ जी, तो इसका मतलब maybe you have missed the first session. Let me do one thing. Don't worry. It is very important thing. So let me explain it again. तो जिसने भी ध्यान नहीं दिया है, they can again understand what happening. Okay. So बहुत important चीज है. This is very very important part. It is going to create a base for you. तो सबसे पहले देखते हैं, थोड़ी देर के लिए मान के चलिए इसमें कोई कोड लिखा ही नहीं है. सिंपल कोड क्या लिखा है? ये कोड लिखा है. So let me comment this code. केवल ये कोड लिखा है. Are you able to see only this single line of code? Yes. अब देखिए, जब ये लाइन लिखते हैं तो सबसे पहले फर्स्ट ऑफ ऑल अंडरस्टैंड दिस थिंग, व्हेनेवर यू रन दिस कोड, रन एज जावा एप्लीकेशन, होता क्या है? द कंट्रोल कम्स टू दिस क्लास, जिस क्लास को आप रन करते हो उसके अंदर कहां पे आता है? मेन फंक्शन. इज इट ओके? और मेन फंक्शन में आने के बाद इट स्टार्ट एग्जीक्यूटिंग वन बाय वन लाइन, एक एक करके सारी लाइन को रन करता है. तो इसमें इस समय कितनी लाइन लिखी है? ओनली वन. यस और नो? Yes. अब देखिए करता क्या, ध्यान से देखिएगा. When control come to here in the function, it goes to this line and it found it has written new student. इसका मतलब it has to call a special function student in the student class. तो ये student class के पास यहाँ पे जाता है. Just control will go to here और उस student जो इसके अंदर invisible format में function लिखा है, it always try to call it और उसे call कर लेता है. आपको दिख नहीं रहा है लेकिन वो अवेलेबल है, कॉल कर लेता है. अगर नहीं होता तो ये क्या करता है? यहाँ पे एरर देता. तो आप देखो ये करता क्या है. When this line is called in the memory, just assume it is the whole memory. ये पूरी एक मेमोरी है. Is it okay? Yes. इस मेमोरी के अंदर सबसे पहले क्या करता है? जब उसको ये कंस्ट्रक्टर मिलता है, वो उस क्लास के पास जाता है और क्लास के पास जाने के बाद इस क्लास के लिए एक मेमोरी असाइन करता है. इस क्लास के लिए क्या असाइन करता है? मेमोरी S. Is it okay? Yes. तो ये दिस मेमोरी इज असाइंड फॉर ऑब्जेक्ट. आपने अगर ये लाइन एक बार लिखी है तो एक बार ये काम होगा. इफ यू हैव रिटन दिस लाइन 2 times, so it means when this program will run, the same thing will happen 2 times. Getting my point? Yes or no? Yes. तो ये ओवल शेप में I have shown you, this is the memory, this is the memory for the object. जब भी ये रन होगा तो ये मेमोरी में क्या बनाएगा? ऑब्जेक्ट के लिए स्पेस बनाता है, एक जगह बनाता है. क्लियर है? हाँ जी, यस और नो? Yes. अब जब इसमें जगह बनाता है, when it create the place. अच्छा, tell me one thing, anybody who is not comfortable in हिंदी? कोई ऐसा जिसको हिंदी बिल्कुल नहीं आती है? Okay, great. So what happens that when the control comes to this, you can say class,
तो ये करता क्या है, फर्स्ट ऑफ ऑल इट क्रिएट्स द मेमोरी विद इन द मेमोरी, और इसके बाद देन इट फाइंड्स हाउ मेनी प्रॉपर्टीज आर डिफाइंड इन द क्लास। कितनी प्रॉपर्टी डिफाइन है यहाँ पे, 1 2 एंड 3। तो ये करता क्या है, विद इन दिस ऑब्जेक्ट it creates internally within this object it creates 3 internal memory। इस ऑब्जेक्ट की मेमोरी के अंदर ये 3 मेमोरी क्या बनता है, फिर से असाइन करता है फॉर स्टोरिंग 3 प्रॉपर्टीज। एक स्टूडेंट रोल नंबर के लिए, सेकेंड इज फॉर स्टूडेंट नेम, मतलब जितनी भी प्रॉपर्टी है उनके लिए अंदर क्या करता है, इसी ऑब्जेक्ट के अंदर जो मेमोरी है जिसको आप ऑब्जेक्ट बोल रहे हो, इसी मेमोरी के अंदर इंटरनल इनको स्टोर करने के लिए भी क्या करता है, मेमोरी असाइन करता है। गेटिंग माय पॉइंट, इज इट ओके, यस और नो? यस। किसको डाउट था, राबिया को? राबिया यू हैव अ डाउट, यस और नो? तो सर कौन पूछा था फिर, किसको डाउट था फिर? नहीं सर, डाउट तो मैंने पूछा था, मतलब अभी इसमें कोई डाउट नहीं जो आप बता रहे। अच्छा ओके ओके ठीक है। तो चलिए ये काम होता है, व्हाट हैपेंस दैट इट क्रिएट्स द ऑब्जेक्ट और ऐसे बनाता है। अब देखो, अगर इफ आई एम राइटिंग ओनली दिस लाइन ऑफ कोड, अगर मैंने केवल इतना कोड लिखा है तो इतना ही काम होगा। नाउ द कंट्रोल विल गो टू द नेक्स्ट लाइन, इज इट ओके राबिया? कंट्रोल कहां जाएगा, नेक्स्ट लाइन में। जो Yeah. नेक्स्ट लाइन में जाएगा सो इट विल डू द सेम थिंग। क्या करेगा ये स्टूडेंट क्लास के पास जाएगा और यहाँ पे एक ऑब्जेक्ट बना के मेमोरी में एक अलग से स्पेस बनाएगा और उसके अंदर इन 3 प्रॉपर्टी के लिए क्या बनाएगा, सेपरेट स्पेस बनाएगा, समथिंग लाइक दिस। तो कुछ ऐसा ही काम होगा, कैसा, just like the same object it will create another object in the memory, is it okay? Yes. Yes sir. And then control will go to the next line, कंट्रोल आपकी नेक्स्ट लाइन में आ जाएगा। मैंने आपको बताया सेमी कोलन मीन्स द फुल स्टॉप, वंस इट आइडेंटिफाई द सेमी कोलन कंट्रोल विल गो टू द नेक्स्ट लाइन। यहाँ नेक्स्ट लाइन में कंट्रोल आ गया। अब मैं आपसे जानना चाहता हूं, इफ यू वांट टू सेट सम वैल्यू, मेमोरी में आपको ये पहले ऑब्जेक्ट के स्टूडेंट रोल नंबर में 4 वैल्यू को असाइन करना था, कैसे करोगे? योर कंट्रोल इज ऑन लाइन नंबर 13। गेटिंग माय पॉइंट, यस और नो? यस। कैसे करोगे मुझे बताओ। राबिया, यू आर गेटिंग माय पॉइंट? यस सर। सर इसके लिए एक मतलब रेफरेंस की जरूरत पड़ेगी। रेफरेंस की जरूरत पड़ेगी, और ऐसा हमने पहले रेफरेंस तो बनाया नहीं। मेरा कंट्रोल यहाँ पे आ चुका है, ये ऑब्जेक्ट मेमोरी में है, इसका मैंने बहुत अच्छा एग्जांपल दिया था। यू कैन एज्यूम इज जस्ट लाइक क्रिएटिंग द ऑब्जेक्ट ऑफ अ एग्जांपल। जस्ट टेक द एग्जांपल की राबिया को मैंने क्या किया, राबिया यू कैन टेक द एग्जांपल, एक मेमोरी को एक बड़ा सा एक रूम मान लो, है ना, और आपको मैं मान लेता हूँ कि आप जो ऑब्जेक्ट बनाने का काम कर रहे हो, आप रूम के बाहर खड़े हो, रूम एक मेमोरी है, आप रूम के बाहर खड़े हो, और जो ऑब्जेक्ट है वो ऑब्जेक्ट को मैं मानता हूं एक बलून की तरह। तो मैं आपको ब्लू कलर का एक बलून देता हूं, उसमें सेम साइज की हवा भर के देता हूं आपको, और आपसे कहता हूं इसको रूम में थ्रो कर दो, इसको रूम में क्या कर दो, थ्रो कर दो। आपने पहले को थ्रो कर दिया, ऐसे ही मैंने सेम कलर सेम साइज का दूसरा बलून दिया, तीसरा दिया, एंड यू हैव थ्रोन ऑल द बलून्स इन द रूम। इज इट ओके राबिया? कॉन्सेप्ट क्लियर है? यस। अब आप मेमोरी के अंदर नहीं जा सकते, रूम इज जस्ट लाइक ए मेमोरी। ऐसे ही हो रहा है इस रूम में, जैसे आपके ऑब्जेक्ट दिख रहे हैं ऐसे ही मेमोरी में आप मान सकते हो रूम में क्या है, ये बलून पड़े हुए हैं। मैं आपसे बोलूंगा कि मुझे इसमें से आई वांट टू बस्ट और पिंच द थर्ड बलून। जो आपने तीसरा बलून उस रूम में फेंका है आपने, उसको आपको क्या करना है, पिंच करना है, बस्ट करना है। कर पाओगे आप? यू आर नॉट अलाउड टू एंटर इनटू द रूम। कर पाओगे? मतलब कुछ एक्सेस देना पड़ेगा बलून तक बाहर से। मैंने आपसे बोला ना, बिल्कुल आपने क्या बोला, एक्सेस देना पड़ेगा। एक्सेस मतलब कहीं ना कोई एक कनेक्शन तो बना होना चाहिए था, कि जब वो बलून रूम के अंदर आप फेंक रहे थे तो आपके पास उसका कोई कंट्रोल तो होना चाहिए था, यस और नो? उस थ्रेड, हाँ, कोई ना कोई एक कंट्रोल होना चाहिए। तो उसका एग्जांपल ये है कि यहाँ पे भी क्या हो रहा है, अगर आप केवल इतना लाइन ऑफ कोड लिख रहे हो तो ये ऑब्जेक्ट बनाता जा रहा है और उसको मेमोरी में क्या कर रहा है, क्रिएट करता जा रहा है, बनाता जा रहा है, और आप हर बार नेक्स्ट लाइन पे आ रहे हो। एक बार आप नेक्स्ट लाइन पे आ गए तो पुराना जो भी आपने बलून फेंका है, ऑब्जेक्ट बनाया, उसका आप पे कोई कंट्रोल नहीं है, यस और नो? तो हम यहाँ पे क्या करते हैं, जब भी whenever you try to write this line of code, इसी लाइन के सेम इंस्ट्रक्शन में सेमी कोलन के का मतलब होता है इट वन इंस्ट्रक्शन इन द सेम लाइन आई राइट टू दिस कोड स्टूडेंट STU और 1 लिख दो फॉर द टाइमिंग, राइट 1। तो ये क्या करेगा, ये इंस्ट्रक्शन कब कंप्लीट माना जाएगा, जब ये सारा काम हो जाएगा, बिकॉज सेमी कोलन मीन्स द होल लाइन शुड बी एग्जीक्यूटेड, यस और नो?
कंट्रोल नेक्स्ट लाइन पे कब जाएगा? जब ये पूरा काम क्या हो जाएगा? दैट विल बी कंप्लीटेड इन द एग्जीक्यूशन। गेटिंग माय पॉइंट, यस और नो? Yes. तो होता है क्या है, प्रीवियसली आई टोल्ड यू कि ये काम तो आपका हो गया क्या, ऑब्जेक्ट बनाने का, जो कि इसने यहाँ पे कर दिया। लेकिन इसी स्टेटमेंट में यू हैव लेफ्ट साइड रिटन द कोड स्टूडेंट एसटीयू। इसका मतलब जो ऑब्जेक्ट आपका बना है उसको आपने इक्वल टू करके इस रेफरेंस को पॉइंट करा दिया है। सो व्हेन द कंट्रोल विल गो टू द लाइन नंबर 11, जब 11 पे आएगा तो ये दो काम करेगा, इट विल क्रिएट द ऑब्जेक्ट एज वेल एज इट क्रिएट द रेफरेंस। गेटिंग माय पॉइंट? S1। और इस S1 को किससे पॉइंट करा देगा? पहले वाले ऑब्जेक्ट से जिसको आपने किया। गेटिंग माय पॉइंट, यस और नो राबिया? और when the control will go to the next line, तो next line पे भी जब भी आप ऑब्जेक्ट बनाओ, so it is the best advisable way that you should create a reference। क्योंकि जब भी आप ऑब्जेक्ट बनाते हो एक पॉइंटर जरूर बना लो, एक रेफरेंस जरूर बना लो। अब क्या होगा, when the control will come to line number 12, it will create the object in the memory, something like this, ऐसे बनाएगा। But same time when the control move to the next line, जैसे ही कंट्रोल नेक्स्ट लाइन पे आएगा उससे पहले ये काम भी हो जाएगा, क्या? It will create the STU reference। मैंने यहाँ पे S1 लिख दिया है, यहाँ पे भी S1 लिखते हैं so that we will be in sync। तो ये क्या करेगा? It will create S2 reference यहाँ पे, and S2 will point to which? Tell me which? Second object। Second object. अब अगर मैं आपसे क्वेश्चन करता हूं इन सिनेरियो में, तो इसको मान के चलो क्या है, दिस इज अ बलून एंड दिस इज अ थ्रेड, दिस इज अ थ्रेड। ये एक बलून है और ये उसका क्या है, एक डोरा है। उस थ्रेड से आपने इसको क्या कर दिया है? बांध दिया है, एक कनेक्ट कर लिया है। अगर अब मैं आपसे कहता हूं कि रूम में से तीसरा बलून आप फोड़ दो, ट्राई टू पिंच इट, तो आपको रूम के अंदर नहीं जाना है। आप क्या करोगे? जो थ्रेड आपने तीसरे बलून में बांधा है उसको आप क्या करोगे? यू विल ट्राई टू पुल। आप उसे खींचोगे, आपके पास बलून आ जाएगा, आप उसे पिंच कर दो। ऐसे ही आपने सेकंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ जितने भी बलून आपने रूम में फेंके हैं, फेंकने से पहले आपने उसमें एक डोरा बांध के उसका एक कंट्रोल क्या लिया है? अपने हाथ में। गेटिंग माय पॉइंट, यस और नो? तो सर अगर किसी ऑब्जेक्ट को हमें रिमूव करना है तो बस मतलब रेफरेंस को डिलीट करना इज द वे टू रिमूव द ऑब्जेक्ट। वेरी गुड, वेरी गुड। देखो आपने कितना अच्छा आंसर दिया, एंड इट इज टोटली रिलेटेड टू माय एग्जांपल। आपके सारे बलून आपने 5 के 5 बलून यू हैव थ्रोन इन द रूम, और थ्रेड में बांध करके उसका दूसरा थ्रेड का जो साइड है दैट इज इन योर हैंड। यस और नो? आर यू गेटिंग माय पॉइंट? दैट इज इन योर हैंड। तभी तो आप रूम के बाहर खड़े होकर कंट्रोल कर पा रहे हो। अब आपने बहुत अच्छी चीज बोली कि अगर मुझे लगता है कि किसी बलून की मुझे कभी कोई जरूरत है ही नहीं, तो मैं क्या करूंगा? उस डोरे को क्या कर दूंगा? तोड़ दूंगा। गेटिंग माय पॉइंट, यस और नो? Yes. तो यहां पे देखिए क्या है, S1 इज अ, यू कैन से S1 इज लिंकिंग टू दिस ऑब्जेक्ट। अगर S1 से ही, S1 आपको बता रहा है कि S1 से आप इस ऑब्जेक्ट को पॉइंट कर रहे हो, S2 से इस ऑब्जेक्ट को पॉइंट कर रहे हो। बहुत अच्छी चीज बता रहा हूं आपको, यू आस्क मी वेरी वेरी क्वेश्चन। अगर मैं S1 इक्वल टू लिख दूं नल, S1 इक्वल टू क्या लिख दूं? नल। तो ये S1 इक्वल टू नल मतलब पता है क्या होता है? Whenever it find this line of code, ये क्या करता है? जिस भी ऑब्जेक्ट को ये पॉइंट कर रहा है उससे उसका कनेक्शन क्या करता है? तोड़ देता है। Getting my point? Yes. So when I'm writing S1 equal to null, तो कभी भी आपको जरूरत पड़े, किसी ऑब्जेक्ट की जरूरत नहीं पड़ती है, तो दिस इज द वेरी वेरी इंपॉर्टेंट रूल ऑफ जावा। ये मैं इस समय नहीं बताता हूं, यू आस्क मी दिस क्वेश्चन, दैट्स व्हाई आई एम टेलिंग यू कि जब भी किसी ऑब्जेक्ट की जरूरत आपको खत्म हो जाए तो आप ये कोड जरूर लिखना है, S1 equal to null। इससे क्या होता है? दिस लाइन, दिस रिलेशन इज ब्रोकन। और जावा का रूल है कि जावा क्या करता है, मेमोरी में जिस ऑब्जेक्ट को कोई भी पॉइंट नहीं करता है उसको थोड़ी देर बाद वो क्या करता है? डिस्ट्रॉय। गेटिंग माय पॉइंट, यस और नो? जावा मेमोरी में ढूंढता है, अगर कोई ऐसा ऑब्जेक्ट मिल रहा है जिसका कोई रेफरेंस नहीं है, तो वो आफ्टर सम टाइम इट जस्ट डिस्ट्रॉय। इसका मतलब जब आप ये लाइन लिखोगे S1 इक्वल टू नल, दिस रिलेशन विल बी ब्रोकन। अब S1 किसी को भी पॉइंट नहीं कर रहा है, ये वाला जो आपका ऑब्जेक्ट है ये कुछ देर बाद अपने आप मेमोरी से डिस्ट्रॉय कर दिया जाएगा जावा के थ्रू, एंड दैट इज नोन एज जावा ऑटोमेटिक गार्बेज कलेक्शन। इसी को क्या बोलते हैं? Java automatic. इसी को बोलते हैं जावा ऑटोमेटिक गार्बेज कलेक्शन। मतलब जावा के पास अपने आप एक एल्गो लिखी हुई है
कि अगर कोई ऑब्जेक्ट वहां पे है जिसको कोई पॉइंट नहीं कर रहा है, तो मान लेता है कि इसको कोई पॉइंट नहीं कर रहा है, इसका कोई पेरेंट नहीं है, मतलब कह सकते हो इट इज यूजलेस, कोई इसे यूज ही नहीं करना चाहता, ये यूजफुल है वर्ल्ड में, तो इसे क्या करता है, वो डिस्ट्रॉय कर देता है। गेटिंग माय पॉइंट? और अगर आप अपने प्रोग्राम में मान लो उसको यूज नहीं कर रहे हो और आपने रिलेशन नहीं तोड़ा है, तो ये तो मेमोरी में क्या रहेगा, इट विल ऑलवेज ऑक्यूपाई द मेमोरी। यस और नो? यस सर। Yes. तो इसलिए ये वाला जो काम है ये आपको करना चाहिए, लेकिन इस समय इसलिए नहीं बताता हूँ बिकॉज दिस इज वेरी वेरी अर्ली स्टेज टू अंडरस्टैंड दिस थिंग। ये बहुत अर्ली स्टेज होती है, इसलिए मैं नहीं बताता हूँ। ठीक है, चलिए ये पार्ट क्लियर हो गया। इज इट ओके? Yes. चलिए Yes. अब here also I will tell you कि आपने जो मुझसे क्वेश्चन पूछा था, प्रदीप, by default this is available in my class, तो हम कभी कभी जो फंक्शन है कंस्ट्रक्टर है वो क्यों बनाते हैं, तो जब आप कंस्ट्रक्टर बनाते हो तो बाय डिफॉल्ट दिस कंस्ट्रक्टर इज अवेलेबल और आप इसको कभी भी नहीं बनाते हो, ये होता ही है। लेकिन अब आपको मैं एक सिनेरियो दिखा रहा था, व्हाट सिनेरियो आई वाज टेलिंग यू, चलिए मैं आपको दिखाता हूँ। मैंने यहाँ ऑब्जेक्ट बनाया, व्हाट विल हैपन व्हेन दिस लाइन विल रन, this will happen. First thing, it will create the object in the memory and point to the S1. Yes or no? करेगा? Yes. इसके बाद the control will come to the next line, और मैंने next line में आपसे क्या बोला है, you can assign some values. S1 तो आपके पास पड़ा ही है reference, you will say student roll number equal to 5. Is it okay? In the next line you will say S1 equal to student name equal to Rabia. Is it okay? Yes. This is not only for Rabia, it is for everybody. सबको समझ में आ रहा है? Yes. So now tell me what will happen when control will come to the line number 12. ये काम तो मेमोरी में कर दिया है. With the help of reference S1, it will go to the memory student roll number. Student roll number में जाएगा, लेकिन किसके student roll number में, जिसको S1 point कर रहा है, and store the value 5 there. तो कहाँ store करेगा 5? यहाँ पे. Yes or no? Yes. When then control will go to the line number 13, it will point to the student name location, but for which object? S1, and store the Rabia. Yes or no? Yes. Clear है? Yes. तो अब now the question is that कि ये काम इसने क्या किया, ऐसे ही आपके और प्रॉपर्टी you can assign it student school name something like that. तो ये काम इसने कैसे किया, पहले ऑब्जेक्ट बनाया, बनाने के बाद नेक्स्ट इंस्ट्रक्शन में इसने क्या किया, आपकी इन प्रॉपर्टी की रोल नंबर को सेट किया और फिर नेम को सेट किया। इज इट ओके? ठीक है, तो मैंने आपसे पहले क्या बताया था, कंस्ट्रक्टर का क्या काम होता है, इस ऑब्जेक्ट को बनाना जो कि आपको दिख नहीं रहा मेमोरी में। यस और नो? हाँ जी, यस और नो? Yes. अब आप ध्यान से एक चीज देखना, मैं आपको यही काम एक ही लाइन में करके दिखाऊंगा कैसे। ध्यान से सुनिएगा दिस थिंग, कंस्ट्रक्टर इज यूज्ड टू क्रिएट द ऑब्जेक्ट। इसका मतलब जितनी भी मैंने आपको स्टोरी बताई है ये वाली, कि ये ऑब्जेक्ट एक मेमोरी में ओवल शेप ऑब्जेक्ट बनाता है, फिर स्क्वायर ब्रैकेट में एंटर मेमोरी देता है, जहां पे इट असाइन द रोल नंबर स्टूडेंट नेम, ये सब कहाँ होता है, इस फंक्शन के अंदर जो मैं यहाँ पे आपको विजुअल फॉर्मेट में दिखा रहा हूँ, एंड दैट इज कंस्ट्रक्टर। इज इट ओके? यस और नो? इसी के अंदर होता है। यस और नो? हाँ जी, यही तो बोला है मैंने, ये काम किससे होता है, जब ये इसको कॉल करता है तो सारा काम मेमोरी में इसी से होता है। यस और नो? Yes. आप चाहो तो इसके अंदर अपना कुछ भी जो करना चाहो वो काम भी कर सकते हो। जैसे मैंने क्या किया था, मेरा मन कर रहा था, मैंने एक एसओपी लगा दिया, तो जो ये काम कर रहा था वो तो ये करेगा ही, साथ में आपका ये काम भी कर देगा। हेलो, तो ये मेमोरी में ऑब्जेक्ट तो बना रहा है, साथ में इसके अंदर वो कोड जो लिखा है इसके साथ ये क्या कर रहा है, इस कोड को भी रन कर रहा है। अभी मैं बता रहा हूं आपको व्हाट इज द पर्पस टू टेलिंग मी दिस थिंग। ठीक है, आर यू एबल टू सी दिस थिंग वर्किंग फाइन? अरे यस और नो तो बोलो। यस सर। सर तो मतलब कंस्ट्रक्टर आप बता रहे हैं कि अलग से बनाए हैं, तो अगर हमें अपार्ट फ्रॉम जो प्रॉपर्टी है, प्रॉपर्टी में जो हम वैल्यू असाइन करते हैं, उसके अलावा अगर हमें कुछ और प्रिंट कराना है या कोई एक्सप्रेसली कोई चीज लिखवाना कुछ और है, कराना है या और एक स्पेशल रीजन होता है। क्या होता है कि आपको देखो यहाँ पे मैं क्या कर रहा हूँ, ऑब्जेक्ट बना रहा हूँ, और ऑब्जेक्ट बनाने के बाद जब ऑब्जेक्ट बन जा रहा है तब आगे फर्दर इंस्ट्रक्शन में मैं वैल्यू सेट कर रहा हूँ। मैं चाहूं तो ऑब्जेक्ट बनाते वक्त भी ये वैल्यू उसमें सेट कर सकता हूं। कैसे, ध्यान से देखिएगा, दिस इज अ फंक्शन, कंस्ट्रक्टर इज ऑल्सो अ फंक्शन। यस और नो?
Yes. तो कंस्ट्रक्टर इज अ फंक्शन, इट आल्सो फॉलोज द रूल्स ऑफ द फंक्शन। क्या फंक्शन में पैरामीटर पास कर सकते हैं? बिल्कुल कर सकते हैं। अगर Yes. आपके फंक्शन को मैं पैरामीटराइज बना दूं तो मैं एक काम करता हूं, आपके इस कंस्ट्रक्टर को मैं पैरामीटराइज बना देता हूं। ठीक है, पैरामीटराइज क्यों बना रहा हूं मैं आपको बताता हूं। मेरा रिक्वायरमेंट था कि जो मैं ये काम 2 लाइन में कर रहा हूं इसको मैं इसी समय कर दूं जब ऑब्जेक्ट बन रहा है। तो कैसे करूंगा? अगर मैं ये राबिया को इस 5 को यहां पास कर दूं और राबिया को इसी कंस्ट्रक्टर के फंक्शन में किसी तरह मैं पास कर दूं, तो ये चीजें कहां अवेलेबल हो जाएंगी? इस फंक्शन के अंदर। यस और नो? यस और नो? Yes. तो पहले इसको इस फंक्शन के अंदर पहुंचाते हैं कैसे? ये चीजें आप तभी पास कर पाओगे जब इस फंक्शन के अंदर कैपेबिलिटी होनी चाहिए। 2 पैरामीटर चाहिए इसको, एक तो इंट चाहिए रोल नंबर के लिए, यस और नो, Yes. और दूसरा चाहिए स्ट्रिंग, ताकि ये वहां से क्या लेके आए? नेम। Name. इज इट ओके? Yes. अब देखो, एक बेनिफिट आपने ले लिया, अब यहाँ पे एरर चली गई, बिकॉज द थिंग इज दैट कंस्ट्रक्टर इज ऑल्सो अ फंक्शन, कंस्ट्रक्टर ऑल्सो फॉलोज द रूल ऑफ फंक्शन। तो आप कंस्ट्रक्टर को बाय डिफॉल्ट कंस्ट्रक्टर तो वो ऐसा आपको बना के देता है, ये देखो, ये बना के देता है जिसमें कोई भी पैरामीटर पास नहीं होता है। लेकिन आप चाहो तो एक कंस्ट्रक्टर और अपना बना सकते हो जिसके अंदर क्या हो? पैरामीटर भी पास हो। तो ये तो उसके पास बना बनाया रखा है, आप एक कंस्ट्रक्टर और बना लो, चाहे इसी कंस्ट्रक्टर में मॉडिफाई कर लो। तो मैंने क्या कर लिया, इसी कंस्ट्रक्टर में मान लो मॉडिफाई करके 2 पैरामीटर बना दिए। फायदा क्या होगा? इस लाइन को कमेंट कर दो। दिस टाइम व्हेन द कंस्ट्रक्टर विल बी कॉल्ड, जब कंस्ट्रक्टर कॉल होगा तो जब ये कंट्रोल यहाँ पे जाएगा जो कि यूजुअली जाता है, इस बार 2 वैल्यू लेके जाएगा। यस और नो? Yes. Yes. आप क्या करो, मैंने बोला था आपसे कि ऑब्जेक्ट बनाने का काम इस फंक्शन की बॉडी में होता है, तो आप इसको सेट करने का काम इसकी बॉडी में कर दो। देखो कैसे, ये स्टूडेंट रोल नंबर प्रॉपर्टी है, इसके अंदर सेट कर दो जो आपने यहां से रोल नंबर पास करवाया है। ध्यान से देखना। और नेक्स्ट लाइन में जो आपने यहां से स्टूडेंट नेम प्रॉपर्टी इस क्लास की बनती है, उसमें क्या सेट करा दो? जो आपने क्या पास किया है? नेम। Hmm. इज इट ओके? अब आप मुझे एक चीज ध्यान से देखना, मैंने आपको यहाँ प्रिंट करके इसलिए पहले यहाँ पे दिखाया था, वो हटा दिया मैंने। अब आपको दिखाता हूं, मैंने यहाँ पे कोई सेटिंग नहीं की है, लेकिन अगर मैं ध्यान से देखना, मैं प्रिंटिंग कर रहा हूं और प्रिंटिंग में मैं क्या लिखूंगा देखना, s1 डॉट स्टूडेंट रोल नंबर। आप देखना क्या वैल्यू सेट हुई है कि नहीं हुई है। s1 डॉट स्टूडेंट नेम। ध्यान से देखना, मैंने एक लाइन का कोड लिखा है, इट इज प्रिंटिंग द वैल्यू। यस और नो? Yes. तो आपने सिर्फ इतना काम किया है। फिर से एक एग्जांपल समझिए, वेरी वेरी इजी एग्जांपल। आपके किचन में, मैं हमेशा आई ऑलवेज ट्राई टू टेक द एग्जांपल फ्रॉम द रियल लाइफ एंड इजीएस्ट वन। फॉर एग्जांपल, आप ये बताओ, आप जब अपने घर में, सो टेक द एग्जांपल इन योर किचन, यू आर ब्रिंगिंग अ जार। आप एक जार लाते हो जस्ट लाइक ए कंटेनर, और साथ में एक शुगर लेके आ रहे हो। तो आपके पास 2 ऑप्शन है, क्या करते हो आप? किचन में जार लाते हो, उसी समय उसमें चीनी डाल के आप क्या करते हो? किचन में रख देते हो। इज इट ओके? यस और नो? Yes. ये तरीका हुआ क्या कि जब आपका ऑब्जेक्ट बना उसी समय आपने उसमें वैल्यू असाइन कर दी, जो मैंने अभी किया है। इससे पहले हम क्या कर रहे थे? वी आर जस्ट ब्रिंगिंग द जार, जार लाई किचन में रख दिया, उसके बाद कुछ दिनों बाद मैंने क्या किया, उसमें जाके क्या रखी? चीनी। आर यू गेटिंग माई पॉइंट? Yes. आर यू गेटिंग माई पॉइंट? यस और नो? Yes. तो आपने यहाँ पे क्या काम किया है? जब आप ऑब्जेक्ट बनते वक्त, जब मेमोरी में ऑब्जेक्ट बन रहा था, उसी समय आपने वैल्यू को असाइन करवा दिया। और यहाँ पे मैंने क्या किया, ऑब्जेक्ट पहले बना था, फिर मैंने अगले लाइन में मेमोरी में जाके वैल्यू को सेट किया। जब ये लाइन ऑफ कोड रन होगा तो देखो इम्पैक्ट क्या होगा। जस्ट सी हियर, फिर से दिखाता हूं आपको। इन दिस केस जब यहाँ पे रन होगा, कंट्रोल विल गो टू हियर, एक ऑब्जेक्ट ऐसी मेमोरी में देखो ऑब्जेक्ट बनाएगा ओवल शेप में, उसके अंदर ये प्रॉपर्टी रखेगा, और उसके बाद जब इस फंक्शन के अंदर जो कि सारा काम इस फंक्शन के अंदर ये हो रहा है, ये बाय डिफॉल्ट लिखा गया, साथ में देखेगा कि एक्स्ट्रा मुझे क्या काम करना है, जो भी रोल नंबर पास करना था
उसी समय स्टूडेंट रोल नंबर में इसको क्या कर दो, सेट कर दो। तो इसी लाइन में कंट्रोल अगली लाइन में जाने से पहले ये 5 को सेट कर देगा यहाँ पे और राबिया को सेट कर देगा कहां पे, नेम। इज इट ओके, यस और नो? यस। तो दोनों में ओनली द डिफरेंस इज दैट आपने उसी लाइन में, यानी कि आपने ऑब्जेक्ट बनाते वक्त वैल्यू रख दी और यहाँ पे क्या किया, आपने पहले ऑब्जेक्ट बनाया और फिर वैल्यू रखी। वो भी आपको दिखाता हूं। देखो एक ऑब्जेक्ट मैंने ये बनाया है, एक ऑब्जेक्ट मैं आपके सामने और बनाता हूं। ये देखो, इसमें क्या करूंगा, आई विल क्रिएट अ सिंपल, मैंने एक ऑब्जेक्ट केवल बना रहा हूं, इसमें कोई वैल्यू असाइन नहीं कर रहा हूं, इसका नाम रखा S2 और यहाँ पे कोड ऐसे लिखूंगा जिसमें मैं वैल्यू क्या कर रहा हूं, आई एम असाइनिंग आफ्टर क्रिएटिंग इट। तो ऑब्जेक्ट अलग बना और वैल्यू असाइन अलग हुई। गेटिंग माय पॉइंट, यस और नो? यस। यहाँ पे लिखता हूं प्रदीप। अब देखो जब ये कोड रन होगा, इस कोड के रन होने में और इस कोड के रन होने में सिर्फ डिफरेंस ये है कि यहाँ पे ऑब्जेक्ट बना उसी समय वैल्यू असाइन हो गई। यहाँ पे जब रन होगा तो देखना कोड क्या होगा, इट विल गो टू दिस कंस्ट्रक्टर। केवल ये क्या बनेगा, एक प्लेन ऑब्जेक्ट बना देगा। क्या बनाएगा, प्लेन ऑब्जेक्ट। ये बनाया इसने S2 और इसको पॉइंट कर दिया इसने, किसको पॉइंट कर दिया, S2 को पॉइंट कर दिया। अब काम खत्म हो गया। इतना ही काम करके देन इट विल गो टू द नेक्स्ट लाइन 17 में जाने के बाद देन इट विल से कि S2 से मुझे S2 रेफरेंस से इस रोल नंबर पे अब जाओ दोबारा और 7 लिख दो। सो इट इज अ सेपरेट इंस्ट्रक्शन। आर यू गेटिंग माई पॉइंट? आर यू गेटिंग माई पॉइंट? यस। तो अगर आप एक काम एक ही बार में करना चाहते हो तो आप ऐसे कर सकते हो। एंड फॉर दिस पर्पस यू हैव यूज अनदर फ्लेवर ऑफ कंस्ट्रक्टर दैट इज कॉल्ड पैरामीटराइज्ड। ये आपका डिफॉल्ट कंस्ट्रक्टर होता है एंड दिस इज नोन एज पैरामीटराइज्ड कंस्ट्रक्टर। आर यू गेटिंग माय पॉइंट? तो जब भी आपको अपनी पैरामीटराइज्ड कंस्ट्रक्टर की जरूरत पड़े तो आप कर सकते हो। इसका मेनली यूज मैं बताया आपको क्या होता था, बहुत अच्छा यूज बताता हूँ। Suppose take the example, your class contains 20 properties. कितनी प्रॉपर्टी कंटेन करती है, 20। क्या आपको बताओ ये कोड ज्यादा अच्छा लगेगा लिखने में कि ऑब्जेक्ट बनाओ उसके नीचे 20 प्रॉपर्टीज अलग से लिखो, यस और नो? कि ये ज्यादा आसान रहेगा, पैरामीटराइज ज्यादा आसान रहेगा, है ना? जब आपको पता ही है इसमें आपको कि आपको ऑब्जेक्ट बनाने के बाद अगली लाइन में जाके उसको सेट करना ही है तो भाई उसी समय सेट कर दो ना जो ऑब्जेक्ट बन रहा है। You got the point? Yes. गुलाम, सुकेश, अश्विनी, पायल, राबिया, श्रुति एंड विवेक, किसको ये पॉइंट Yes. क्लियर नहीं है? ठीक है? Yes, sir. नहीं, कॉन्फिडेंस नहीं आ रहा सबकी आवाज में। मैंने फिर से बोला कोर्स कंप्लीट होने पे मत ध्यान दो, दैट इज माय थिंग। आप सिर्फ ये ध्यान दो कि आपको समझ में आना चाहिए। अदरवाइज अगेन आई एम सेइंग दैट आप YouTube पे जाके भी देखोगे ना तो भी आपको एक कंटेंट मिलेगा, मेरे YouTube पे जाके देखोगे और बेटर मिलेगा। यहाँ पे आपका पर्पस है कि अगर आपको नहीं समझ में आ रहा है यू कैन स्ट्रेट फॉरवर्ड आस्क मी। पायल, यू आर गेटिंग? यस यस प्रदीप। ठीक है? यस। आपने 20 प्रॉपर्टी वाला एग्जांपल किया, एक बार फिर से बताइए। कौन सा? सर आपने बताया कि अगर 20 प्रॉपर्टीज है मेरे पास। हाँ, तो मैंने वो तो आप ऐसे समझो, अगर आपके इस क्लास में मैं ऐसे कह रहा हूँ कि आपके पास ऐसे 20 प्रॉपर्टी होती, चलिए देखिए, तो मैं कह रहा हूँ कि आपको ये लाइन अगर यहाँ पे ऐसे 20 प्रॉपर्टी होती, जैसे पब्लिक फॉर एग्जांपल यहाँ पे इंट मैं लेता हूँ एक्स एग्जांपल मान लेता हूँ ए, ऐसी आपकी 20 प्रॉपर्टी होंगी। आपको 20 लाइन लिखना पड़ती है, आपको 20 लाइन यहाँ लिखना पड़ेगा। तो आपका कोई काम है 20 लाइन में लिखने की जगह एक ही लाइन में कंस्ट्रक्टर में एक ही लाइन में हो जाएगा, दैट इज मोर गुड। दोनों का टारगेट तो एक ही था ना कि ऑब्जेक्ट बनाओ और उसमें वैल्यू क्या कर दो, सेट कर दो। यस और नो? यस सर। तो सर मतलब जो ये पैरामीटराइज कंस्ट्रक्टर है तो मतलब ये अगर ज्यादा प्रॉपर्टीज हैं तो अलग अलग डिफाइन करने से अच्छा है कि हम पैरामीटराइज कंस्ट्रक्टर बनाएं और एक लाइन में हमारा छोटा होता है। बिल्कुल सही। और देखो दिस फैसिलिटी इज आल्सो गिवन बाय इक्लिप्स, इसीलिए इक्लिप्स में राइट क्लिक करना, यहाँ पे करना, देखो राइट क्लिक सोर्स, और यहाँ पे देखो आपको बाय डिफॉल्ट यहाँ पे जनरेट करके देखो कंस्ट्रक्टर लिखा है जनरेट कंस्ट्रक्टर यूजिंग फील्ड्स। तो देखो आप क्लिक करो, ये आपके लिए वैसे ही बना देगा। आप इसे बताओ कौन कौन सी प्रॉपर्टी चाहिए, 2 डाली या करो जनरेट। देखो कंस्ट्रक्टर बना दिया इसने आपके लिए पैरामीटराइज वाला। Yes. इसने एक स्टैंडर्ड फॉर्मेट बना रहा है, दैट इज अनदर थिंग। मैंने आपको खुद बना के दिखाया ये,
अब ये एरर इसलिए दे रहा है क्योंकि इसको क्या कर रहा है, आपने कंस्ट्रक्टर खुद भी बना दिया और इसको बैठा दिया, तो एक को हटा दो, ये चला देगा। गेटिंग माय पॉइंट? तो ये फैसिलिटी आपको दी गई है, क्यों? क्योंकि अगर आपके पास ऐसी होती तो कितना आसान हो जाता। गेटिंग माय पॉइंट? Yes. Yes. So this is known as constructor. Constructor, this is called default constructor. अगर आप default constructor, if you want to use the default constructor, you don't need to define it. You don't need to define it. क्योंकि ये होता ही है वहां पे by default. आप लिख रहे हो तो आपको दिखाने के लिए मैंने लिख दिया है, अगर मैं ना लिखूं ना तब भी ये वहां पे है। Getting my point? और यहाँ पे ये आपको एक्स्ट्रा जो बनाना होता है जिसमें आपको पैरामीटर पास करने होते हैं, that you have to define by your own. और इसको बोलते हैं पैरामीटर्स। ठीक है। अब यहाँ पे एक स्पेशल इंटरव्यू का क्वेश्चन आता है कि यहाँ पे अगर इफ यू फोकस ऑन वन थिंग, कि यहाँ पे अगर मैं लिखता हूँ void, देखो जैसे मैं यहाँ पे void लिखता हूँ और यहाँ पे जाके देखना आपकी यहाँ पे एरर आनी शुरू हो गई। क्या एरर आ रही है? The constructor instrument is मतलब undefined. अब ये बोल रहा है केवल void लिखते ही इसने बोलना शुरू कर दिया कि ये कंस्ट्रक्टर अनडिफाइंड है। इसका मतलब यहाँ पे देखो एरर नहीं आ रही है, दिस इज नॉट गिविंग एरर, यहाँ पे कोई एरर नहीं आ रही, लेकिन यहाँ से इसने बताना शुरू कर दिया कि इसके अंदर कोई भी कंस्ट्रक्टर ऐसा नहीं है। इसका मतलब क्या होता है, इन द कंस्ट्रक्टर देयर इज अ स्पेशल रूल कि कंस्ट्रक्टर में कोई भी रिटर्न टाइप नहीं लिखते हैं। गेटिंग माय पॉइंट? अगर आपने किसी स्टूडेंट कंस्ट्रक्टर बनाया उसके आगे एक रिटर्न टाइप लिख दिया, नाउ दिस विल बिकम ए नॉर्मल फंक्शन। गेटिंग माय पॉइंट? Yes. तो आपके कंस्ट्रक्टर में ध्यान रखना, कंस्ट्रक्टर कुछ भी रिटर्न नहीं करता है और उसके सिंटेक्स में कभी भी void नहीं लिखते हैं। नेम ऑफ द क्लास एंड जस्ट एक्सेस स्पेसिफायर, इसके पहले एक्सेस स्पेसिफायर लिखते हैं, कोई भी यहाँ पे नहीं लिखेंगे। कंस्ट्रक्टर का कोई भी रिटर्न टाइप नहीं होता। गेटिंग माय पॉइंट? इसका काम केवल ऑब्जेक्ट बनाना है। किसी को कोई डाउट? No. ठीक है। No, sir. तो ये हमारा इसका कंस्ट्रक्टर का होगा। ठीक है। अच्छा, नाउ आई विल कवर वन रिमेनिंग टॉपिक ऑफ एक्सेस स्पेसिफायर। एक्सेस स्पेसिफायर मैंने आपको आई टोल्ड यू इन द फर्स्ट सेशन। एक्सेस स्पेसिफायर का काम क्या होता है मैंने बताया था, सो दैट यू कैन एक्सेस द प्रॉपर्टी इन द सेम क्लास, अनदर पैकेज। यस और नो? Yes. Yes, sir. तो यहाँ पे I have told you about the access specifier in respect of properties. Same is applicable for functions. अब आपको दिखाता हूँ, किसी भी फंक्शन के आगे अगर मैंने देखो यहाँ लिखा पब्लिक, तो किसी भी क्लास को ले लो, स्टूडेंट क्लास इज अवेलेबल इन दिस पैकेज एंड मेन क्लास इज अवेलेबल हियर। तो मेन क्लास के अंदर आप देखना मैं क्या करता हूँ, लेट मी रिमूव द अनयूज्ड कोड हियर। मेन क्लास के अंदर मैं क्या करता हूँ, लेट मी क्रिएट द ऑब्जेक्ट ऑफ ए स्टूडेंट क्लास। stu डॉट लिखता हूं, ऐड फंक्शन लिखता हूं, 4। आर यू एबल टू सी एनी एरर? No. No. स्टूडेंट क्लास दूसरे पैकेज में है, मेन क्लास दूसरे पैकेज में है। ठीक है, कोई एरर नहीं आ रही, बिकॉज द स्टूडेंट क्लास इज इन द स्टूडेंट क्लास, द एक्सेस स्पेसिफायर ऑफ ऐड फंक्शन इज पब्लिक। इसको बना दो प्राइवेट। जैसे सेम रूल, जैसे ही as I have made it private, you will see main class it start giving error. 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 Here a student is not, is to add function from the student class is not visible, क्योंकि यहाँ पे रूल क्या लग गया है, private things are only accessible within the same class। अगर मैं यही कोड किस में लिखता, सेम मेन क्लास में लिखता, स्टूडेंट क्लास में, तो ये एरर नहीं देता। You want to see it? Just see it. It is giving any error? यहाँ पे कोई एरर दे रहा है? No. No. Because this function is defined as private and private things are accessible within the same class. किसी दूसरी क्लास में एक्सेस हो ही नहीं सकती है। ये क्लास जो थी वो दूसरे पैकेज में थी। You can take the example of same package. स्टूडेंट क्लास में ही सुकेश नाम की क्लास है। सुकेश में मेन फंक्शन के अंदर मैं क्या करता हूँ, ये देखो मैंने कॉल भी किया हुआ, एरर दे रहा है, बट लेट मी डू वन थिंग, मैं सेम आपका वहां पे कोड करके कॉपी लाता हूँ। यही फंक्शन मैं लिखता हूँ कहाँ पे, सेम कॉलिंग फंक्शन आई एम राइटिंग इन द सुकेश। सुकेश इज इन द सेम पैकेज, यस और नो?
Yes. लेकिन फिर भी it is giving the error. क्यों? क्योंकि private things are only accessible within the same class. अब इसको क्या करते हैं? What is the second access specifier? Remove this thing and it is known as default. आप लोग रिवाइज नहीं कर रहे हो. किसी प्रॉपर्टी के आगे कोई भी एक्सेस स्पेसिफायर नहीं लिखते तो उसको क्या बोला जाता है? Default. And you will say, what is the condition of default? Default is Within the same accessible package. within the same package. Yes, it is accessible in the same class. That is obvious. It is also accessible in the another class, but another class should be in the same package. Main class में अब भी accessible नहीं. Getting my point? Yes. तो जो एक्सेस स्पेसिफायर आपके प्रॉपर्टीज के लिए फॉलो करते हैं, सेम इज एप्लीकेबल फॉर फंक्शंस. तो दोनों में कोई भी डिफरेंस नहीं है. गेटिंग माय पॉइंट? Yes. तो और एक एक्सेस स्पेसिफायर मैंने आपको बताया था कि मैं आपको बाद में बताऊंगा, दैट वाज प्रोटेक्टेड. वो मैं आपको बाद. दिस थिंग इज क्लियर? Yes. जोश नहीं आ, मजा नहीं आ रहा है, जोश नहीं आ रहा आप लोग की बात में. इतने बढ़िया Yes. बढ़िया. हाँ यस. चलिए अब आप देखते हैं कि हमने इसमें क्या क्या आपके टॉपिक पढ़ा है. एक बार इसको गो थ्रू करते हैं और अब भी आपको इस सिलेबस को देखिए. फाउंड एनी डाउट टिल नाउ यू कैन आस्क मी अगेन. आप कभी हेजिटेट मत करना, ट्रस्ट मी. आप बोर हो जाओगे, आप फ्रस्ट्रेट हो जाओगे, लेकिन मैं बताते हुए कभी फ्रस्ट्रेट नहीं होता. आई ऑलवेज ट्राई टू, यू कैन से, डिलीवर द कंटेंट टिल द टाइम कैंडिडेट इज नॉट सेटिस्फाइड. तो हमने देखो जेडी की इंस्टॉलेशन पढ़ा, कंपाइलर में आपको बता चुका हूं, ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड ये बता चुका हूं कि ऑब्जेक्ट बनाते हैं. प्लेटफॉर्म इंडिपेंडेंट किसी को बताया मैंने? प्लेटफॉर्म इंडिपेंडेंट, यस और नो? व्हाई जावा इज प्लेटफॉर्म इंडिपेंडेंट? हाँ जी, यस और नो? सब बताया था, because it can be written anywhere and can be executed on any system. यस मैंने बताया, फिर भी यस मैंने बताया, फिर भी पीपल आर वेरी वेरी क्वाइट. तो मैं फिर से बताता हूं. मैंने आपको बताया था व्हेन यू जनरेट अ जावा फाइल, आप ये जावा फाइल जनरेट करते हो, लेकिन जब इसको रन करते हो, व्हेन आई एम रनिंग दिस, टेक द एग्जांपल ऑफ दिस मेन क्लास. पहले मैं क्या करता हूं, लेट मी मेक इट पब्लिक. जब हम डिजाइन करते हैं तो भी डिजाइन द जावा क्लास, लेकिन जब हम रन करते हैं तो डॉट जावा को रन नहीं करते, हम किसको रन करते हैं? डॉट क्लास को. When I'm saying, जब हम इस पे राइट क्लिक करके रन कर रहे हैं, आपको लग रहा है किसको रन कर रहे हैं? मेन क्लास डॉट जावा को, लेकिन ये किसको रन करता है? मेन क्लास डॉट क्लास. और ये मैंने आपको बताया कि अगर आप अपने प्रोजेक्ट को जाके देखो, इफ यू गो टू योर प्रोजेक्ट, जहां पे आपका प्रोजेक्ट पड़ा हुआ है, तो हर क्लास के रेस्पेक्ट में क्या बनती है? एक डॉट क्लास. ये देखो, इक्लिप्स आपको एक फैसिलिटी देता है. मैंने कल किसी ने मुझसे पूछा भी था ये बात कि प्रदीप गुलाम ने, आई थिंक गुलाम आज दिस थिंग कि आप जो कमांड रन करते हो क्या बिना इक्लिप्स के भी आप रन कर सकते हो? अगर याद हो आपको, मैंने बताया था जावा नेम ऑफ द क्लास एंड देन जावा डॉट क्लास. तो वो आप जब रन करते हो तो होता क्या है, आपके फोल्डर में बाय डिफॉल्ट यहां बनती है जावा फाइल, और इनके रिस्पेक्ट में बिन फोल्डर एक बना है जिसके अंदर क्या बनती है? डॉट क्लास. Are you able to see, yes or no? जब आप यहाँ पे when you right click और जब राइट क्लिक करके रन एज जावा एप्लीकेशन करते हो, तो ये जावा को नहीं रन करता है, किसको रन करता है? डॉट क्लास को. और ये डॉट क्लास फाइल आपकी क्या होती है? प्लेटफॉर्म इंडिपेंडेंट. आप मेरे से एक क्लास ले जाओ, केवल एक क्लास, जावा फाइल मत ले जाना. ये आप मेरी डॉट क्लास फाइल ले जाओ अपने सिस्टम पे और इसे रन कर दो, चल जाएगी. चाहे आपका सिस्टम लिनक्स हो, चाहे आपका सिस्टम विंडोज हो, चाहे आपका सिस्टम कुछ भी हो, ये क्या हो जाएगा? उस सिस्टम पे रन कर जाएगी. तो रन करने के लिए कोई प्लेटफॉर्म पे डिपेंडेंसी नहीं है कि वो विंडोज का ऑपरेटिंग सिस्टम होना चाहिए, वो डॉस का होना चाहिए, वो लिनक्स का होना चाहिए, वो यूनिक्स का होना चाहिए, वो मैक का होना चाहिए. गेटिंग माई पॉइंट? Yes, sir. अब लोग कहते हैं कि जावा है आपकी. हाँ जी सर, आपको बताया प्लेटफॉर्म इंडिपेंडेंट है और डॉट क्लास फाइल कैन रन ऑन एनी प्लेटफॉर्म और एनी सिस्टम, बट उस सिस्टम पे क्या जावा इंस्टॉल नहीं तब भी चल जाता है?
नहीं नहीं, जावा इंस्टॉल बिना तो नहीं चलेगा, क्योंकि ये तो वेरी वेरी सिंपल बात। वेन एवर यू आर रनिंग द जावा, मैंने बोला था जावा को रन करने के लिए, ये भी मैंने बताया फर्स्ट सेशन में, कि जब भी आप जावा इंस्टॉल करते हो तो आपके सिस्टम पे देखो जावा 2 उसमें इंस्टॉल होती है। सी प्रोग्राम फाइल्स में जब जाओगे, जावा कंटेन्स 2 फोल्डर, जेडीके एंड जेआरई। आपके सिस्टम में जावा को रन करने के लिए चाहिए होता है जेआरई, जावा रन टाइम इन्वायरमेंट, और आपके कोड को डेवलप करने के लिए चाहिए होता है जेडीके। इसीलिए आप कभी कभी देखोगे कि आपके घर में लैपटॉप रखा है, कोई नॉन टेक्निकल बंदा उस पर काम करता है उस सिस्टम पे, लेकिन कभी कभी आप देखोगे उस पर जेआरई पड़ी आपको मिल जाएगी, क्योंकि जो बंदा ऐसा कोई सॉफ्टवेयर यूज करता है जो जावा को यूज करता है, तो उसके सिस्टम पे जेआरई पड़ी होती है, चाहे वो सॉफ्टवेयर के अंदर अटैच करके दे दे, चाहे वो आपके सिस्टम में जब सॉफ्टवेयर इंस्टॉल होता है तो इस जेआरई को क्या करता है, वो इंस्टॉल कर देता है। जेडीके उसको चाहिए होता है जो कोड को क्या करता है, डेवलप करता है। गेटिंग माय पॉइंट, यस और नो? यस। तो इसीलिए आपका जो डॉट क्लास फाइल होती है वो आपकी प्लेटफॉर्म इंडिपेंडेंट होती है, इसीलिए बोलते हैं कि आपका जो जावा है दैट इज प्लेटफॉर्म इंडिपेंडेंट। और एक जगह टर्म लिखा होगा बहुत प्यारा सा कि जेवीएम इज प्लेटफॉर्म डिपेंडेंट। क्या लिखा होता है? जेवीएम इज प्लेटफॉर्म डिपेंडेंट। जेवीएम का मतलब होता है जावा वर्चुअल मशीन, मतलब जब जावा को आप अपने सिस्टम पे इंस्टॉल करते हो, इंस्टॉल करते वक्त वो डिपेंडेंट है कि आपको अगर इसको विंडोज में इंस्टॉल करना है, आपको लाइनक्स में इंस्टॉल करना है, आपको मैक में इंस्टॉल करना है, तो उसके लिए जावा का जो इंस्टॉलर आता है वो क्या होते हैं, अलग अलग होते हैं। गेटिंग माय पॉइंट? आप कभी भी इंटरनेट पे जाके देखना तो आप ये लिखना डाउनलोड जावा। तो आपको जब डाउनलोड जावा करते हो तो आप कभी भी ऑफिशियल वेबसाइट पे जाके देखोगे तो आपको दिखाएगा कि हर उसके लिए, ये देखो कहीं पे भी जाके देखना, दिखा रहा है ना कि लिनक्स के लिए अलग है, मैक के लिए अलग है, विंडोज के लिए अलग है। अलग है। मतलब जावा जो इंस्टॉल करते हो, जावा मींस जेवीएम जो इंस्टॉल करते हो दैट इज प्लेटफॉर्म डिपेंडेंट। इंस्टॉल करते वक्त आपको पता होना चाहिए किस पे इंस्टॉल कर रहे हो, सबके लिए इंस्टॉलर अलग आता है। तो जेवीएम इज प्लेटफॉर्म इंडिपेंडेंट, ओ सॉरी प्लेटफॉर्म डिपेंडेंट। एक बार जावा इंस्टॉल हो गई, उसके अंदर कोड लिख के डॉट क्लास बन गई, तो वो कोड क्या हो गया, प्लेटफॉर्म इंडिपेंडेंट। गेटिंग माय पॉइंट? यस। और ये चीजें क्लियर होनी चाहिए। इसी समय मैंने एक और चीज बताई थी, ये सब चीजें आपको ध्यान रखनी चाहिए। मैंने बोला था कि एक ऑब्वियस सी चीज है कि कोई बंदा जो जावा को रन करना चाहता है उसको जेआरई चाहिए, लेकिन जो बंदा कोड को डेवलप करेगा क्या वो एक बार भी चला के नहीं देखेगा? आप मुझे बताओ, जो बंदा कोड को डेवलप करेगा, चलो जो जो रन करना चाहता है वो तो रन करेगा, लेकिन जो डेवलप करता है वो क्या डेवलप करके छोड़ देगा? उसे रन तो करना पड़ेगा ना, मतलब उसे डॉट क्लास तो बनानी पड़ेगी। इसीलिए जेआरई एक अलग चीज है, जेडीके अलग है, लेकिन जेडीके के अंदर बाय डिफॉल्ट जेआरई क्या होता है, ये देखो अवेलेबल होता है, बिकॉज जेडीके मतलब होता है जावा डेवलपमेंट किट। जो जावा को डेवलप करता है कोड को, वो उसको एक बार रन करके भी देखेगा, इसीलिए उसने इस किट के अंदर जेआरई की एक कॉपी क्या दे रखी है, आपको ऑलरेडी दे रखी है। अगर आप कोड को डेवलप करते हो तो आप जेडीके ले लो, आपको जेआरई की जरूरत नहीं है अलग से, क्योंकि एक कॉपी जेआरई किसके अंदर होती है। गेटिंग माय पॉइंट, यस और नो? यस। तो ये सब चीजें आपके कॉन्फिडेंस को बिल्डअप करती हैं। आई हैव ऑलरेडी एक्सप्लेन इन द प्रीवियस। और मैं आपसे एक और एडवाइस देता हूँ, and that's I'm not doing for my you can say my benefit, I'm saying just for your benefit, कि मेरा हर सेशन मैंने आपसे बार बार बोला है, इट इज ऑलवेज यूनिक। क्योंकि देखो आप क्वेश्चन पूछते हो, राबिया ने क्वेश्चन पूछा, ऑलवेज द डायरेक्शन गो इनटू द डिफरेंट डायरेक्शन, ठीक है? तो हर बार एक नई चीज लर्न करने को मिलती है। तो आपको मैं एडवाइस देता हूँ कि आप चैनल पे जाने के बाद, मैं सारे सेशन नहीं, लेकिन स्टार्टिंग के जो 3-4 सेशन होते हैं जो मैं बहुत इंपॉर्टेंट मानता हूँ, वो लगभग हर बैच के डाल देता हूँ। तो आप इन 2 सेशन को एक बार देखना, यू विल फील इट वेरी वेरी गुड कि आपने जो जावा पढ़ा, जो फंक्शन पढ़ा, जो क्लास पढ़ा, जो ऑब्जेक्ट पढ़ा, आपकी लर्निंग और स्ट्रांग हो जाएगी और आप बोर भी नहीं होंगे कि चलो एक ही सेशन को देख रहे हैं। देखो दीज सेशंस, व्हाट इज क्लास, ऑब्जेक्ट एंड प्रॉपर्टीज, हाउ टू स्टार्ट लर्निंग जावा, ये देखो 2 complete session from the 16th or 17th batch, complete automation first session, this one, complete automation second session, इन 2 को देखो। you have to spend some time on the learning। 2 घंटे में मैंने क्लास ऑब्जेक्ट को समझाया है। मेरी बात समझ रहे हैं? Are you getting my point?
Yes. एक बार आपका ये बेस बन गया, ट्रस्ट मी, आप में से जिसने जावा पढ़ी है, हर बंदे ने थोड़ी थोड़ी जावा पढ़ने की कोशिश की है, यू विल फील इट कि आपको आज जो जावा मैं बता रहा हूं उसको पढ़ने का और आपको जो देखने का नजरिया है, दैट इज टोटली डिफरेंट। क्यों? क्योंकि कभी हमने उसको ऐसे समझा ही नहीं। एक बार ऐसे समझ लोगे, ट्रस्ट मी, आपका जो आगे का जो बिल्डिंग बननी है, दैट विल बी इजी। योर बेस शुड बी स्ट्रॉन्ग। गेटिंग माय पॉइंट? Yes. चलिए, तो हमने आपको बताया दैट वट एवर यू हैव लर्न इन द टर्म्स ऑफ एक्सेस स्पेसिफायर रेस्पेक्ट टू प्रॉपर्टीज, दैट सेम थिंग फॉलोज विद द फंक्शंस। ठीक है, तो हमने ये किया है। फिर मैं आपसे डिस्कस कर रहा था कि हमने यहाँ पे क्या क्या काम कर लिया है। वी हैव लर्न द क्लास, वी हैव लर्न द ऑब्जेक्ट। ठीक है, ऑब्जेक्ट क्लास एक स्पेशल क्लास है, मैं उसके बारे में आपको बाद में बताऊंगा, बिकॉज इट इज रिलेटेड टू द इनहेरिटेंस। मेथड्स आपको मैंने बताया। ऑब्जेक्ट आई हैव ऑलरेडी टोल्ड यू हाउ यू कैन कॉल द क्रिएट द ऑब्जेक्ट। ऑब्जेक्ट बनाने को ही क्या बोलते हैं? इंस्टेंशिएशन। इसीलिए मैंने आपको और एक चीज बताई थी। क्या बताई थी? whenever any property is defined at this level without any static keyword, this is also known as instance property, object property। और जब इसमें static लग जाता है इसको क्या बोलते हैं? class property। तो ये सब चीजें I have already told you, but you have to focus on that। अगर आप फोकस करोगे, then you ask me the question, always try to make a debate to me। mostly what happens that आप करोगे, maybe I'm also going to learn something new from you। और जब डिबेट होता है then always there is a healthy discussion। जब डिबेट होता है, healthy discussion होता है, तो things will never go out of your mind। आपको रिवीजन भी नहीं करना पड़ेगा। अगर आप एक बार रिवीजन करके आओगे और मेरे से डिबेट करोगे, आपको कभी लाइफ में दोबारा पढ़ना ही नहीं पड़ेगा। ओके, सो वी हैव लर्न दिस थिंग। वी हैव लर्न द डेटा टाइप्स यस्टरडे, प्रिमिटिव, नॉन प्रिमिटिव। गुलाम आस्क दिस क्वेश्चन, यस और नो, कि प्रिमिटिव और नॉन प्रिमिटिव क्यों बनाते हैं, क्यों हम स्मॉल में लिखते हैं और क्यों इंटीजर कैपिटल में लिखते हैं, यस और नो? Yes. वेरिएबल टाइप वी हैव ऑलरेडी लर्न कि हमारे किसको हम इंस्टेंस वेरिएबल बोलते हैं, कब हम क्लास वेरिएबल बोलते हैं, व्हेन वी टॉक अबाउट लोकल वेरिएबल्स। मैंने बताया एक्सेस स्पेस आई हैव ऑलरेडी टोल्ड यू, यस और नो? मैंने बताया कि पब्लिक क्या होता है, प्राइवेट क्या होता है, डिफॉल्ट क्या होता है, फाइनल क्या होता है, स्टैटिक क्या होता है। एब्स्ट्रैक्ट के बारे में मैं अभी नहीं बताया, एब्स्ट्रैक्ट एंड प्रोटेक्टेड, दैट आई विल। इज इट ओके? हाँ जी, यस और नो? तो आपको जितने भी टॉपिक बनाए, ट्राई टू वर्क ऑन दैट। प्लीज बी ऑन म्यूट। इफ यू आर नॉट सेइंग समथिंग, प्लीज बी ऑन म्यूट। ठीक है, चलिए अब एक छोटा सा टॉपिक मैं आपको और इंटरेस्टिंग दिखाता हूं, देन आई विल बाइंड अप बिकॉज वी आर गोइंग टू मीट इन द नेक्स्ट वीक नाउ। तो मैं एक छोटा सा टॉपिक आपको बताता हूं। Can you please share this syllabus again on WhatsApp channel? Right now I will share, don't worry, let me do. Okay, I will share I've shared the entire screen. Okay, I will share, don't worry. Okay, when the session will complete, I will open the WhatsApp and share it to you. Sure. Okay? Okay. चलिए अब आते हैं यहाँ पे बात करने की। मैं आपको छोटा सा एक बताता हूँ। टॉपिक इज वेरी स्मॉल, लेकिन दिस इज माय वे ऑफ टीचिंग कि मैं हर चीज को तब बताता हूँ। ऑलवेज आई ट्राई टू गिव द प्रॉब्लम स्टेटमेंट, देन आई विल गिव द सॉल्यूशन। चलिए, मेरे पास एक वेरिएबल मैं देता हूँ, लोकल वेरिएबल बना रहा हूँ। ऑलवेज ट्राई टू यूज द टर्म, ऐसी टर्म यूज क्या करो। अगर मैं ये वेरिएबल यहाँ बनाता, दिस इज नोन एज, क्या आता है यहाँ पे, इफ आई एम क्रिएटिंग अ वेरिएबल एट क्लास लेवल, इट इज नोन एज ऑब्जेक्ट वेरिएबल और इंस्टेंस वेरिएबल, है ना। और अगर ऐसे ही मैंने इसको किसी फंक्शन के अंदर बना दिया, दिस इज नोन एज लोकल। अब ये लोकल वेरिएबल हो गया। ठीक है, चलिए अब आपको मैं एक स्टेटमेंट दे रहा हूं। आई एम गिविंग यू अ प्रॉब्लम स्टेटमेंट एंड यू हैव टू गिव मी द आंसर। हाउ मेनी लाइन्स ऑफ कोड आई हैव रिटन इन माय मेन फंक्शन? हाउ मेनी लाइन्स ऑफ कोड? कितने लाइन का कोड लिखा है? 3 लाइन्स का कोड। चलिए, व्हेन आई रन दिस कोड, ये क्या करेगा? सिंपली इट फॉलोज द रूल, it go into the main function and one by one it will execute each and every line. Control will go to the line 1, it will execute, it will create a variable in the memory, 4 will be stored and a is going to point that. Then it will go to this line, it will print even and it will print all. It is very simple thing. Because the thing is that Java always follow the sequential order. It goes to the main function and one by one it execute all the lines. Yes or no?
Yes. Now my requirement is that somebody told me that I don't want to print both the statement. I want to print only one statement, and the condition is that you have to decide that whether the value of A is even or odd. If the value of A is even, I want to execute only this statement, and if the value of A is odd, I want to execute only this statement. तो वो जावा क्या बोल रहा है मुझसे? जावा में स्टेटमेंट ये है, वो कह रहा है कि भाई मैं चाहता हूं ये दोनों रन ना करें। वो कह रहा है मैं कंडीशन चाहता हूं कि आप इसे सीक्वेंशियल ऑर्डर में रन मत करो, आप कंडीशनल ऑर्डर में रन करो कि अगर इसकी वैल्यू कोई मुझे इवन देता है तो ये चले, और ऑड देता है तो ये चले। गेटिंग माय पॉइंट? Yes. So Java has given a concept that is called conditional statement. That topic is known as conditional statement. Java ने बोला कि whenever you come to the execution order, मैं simply इसको run कर देता हूं। अगर आप इसको simply run नहीं करना चाहते हो तो you can wrap in a condition. तो condition में कैसे wrap करते हैं? ध्यान से देखिएगा। जिस भी स्टेटमेंट पे आपको कंडीशन लगानी होती है, सबसे पहले रैप इन ए ब्लॉक। सबसे पहले उसको ब्लॉक में रैप कर दो, उसके बाद ठीक इस ब्रैकेट के पहले यू राइट ए कंडीशन। तो कंडीशन कैसे लिखते हैं? इफ, और एक ब्रैकेट लगा। इस इफ ब्रैकेट के अंदर आप कोई कंडीशन लिख दो, अगर वो कंडीशन, इफ दैट कंडीशन विल बी सेटिस्फाइड, इफ दैट कंडीशन विल बी ट्रू, देन ओनली दिस ब्लॉक विल रन। तो कोई मुझे बताएगा कैसे मैं बता सकता हूं कि ए की वैल्यू चेक करूं कि इवन है कि ऑड है? If like module by 2 is equal to 0. चलिए, जिसको नहीं पता है मैं उसको बता देता हूं कि मैथ में सिंपल सा रूल है, अगर मैं इस नंबर को 2 से डिवाइड करूं और अगर रिमाइंडर बच गया तो वो ऑड हो जाएगा, और रिमाइंडर नहीं बचा तो क्या हो जाएगा? Even. सही कह रहा हूं? तो यहाँ पे जो रिमाइंडर निकालने का तरीका होता है ना, ये रिमाइंडर निकालने का तरीका दैट इज डायरेक्टली गिवन बाय जावा, कि इस मॉडुलस का मतलब ही क्या होता है? अगर मैं लिखता हूँ a डिवाइड b, तो इसका मतलब ये a को क्या करेगा? a को 2 से डिवाइड करेगा। लेकिन अगर मैं इसको मॉडुलस लिखता हूं तो उसका मतलब होता है जब ये a को b से डिवाइड करने पे क्या रिटर्न करेगा? रिमाइंडर। a मॉडुलस 2 means when a is divided by 2 it represents the remainder. Getting my point? हाँ जी, yes or no? Yes. Yes, sir. आप चाहो तो इसको एक लाइन में और लिख सकते थे ऐसे, इंट, एक वेरिएबल बना लो जिसका नाम लिखो रिमाइंडर। आई ऑलवेज ट्राई टू यू कैन से यूज फ्यू वेरिएबल्स। आप चाहते ऐसे कर लो, ये देखो कंट्रोल एक्स, ये क्या करेगा? a मॉडुलस 2 मतलब ये रिमाइंडर निकालेगा और रिमाइंडर में स्टोर हो जाएगा। देन आई विल चेक द कंडीशन ऑफ रिमाइंडर। इफ रिमाइंडर इक्वल टू 0 इट विल बी इवन। यस और नो? Yes. तो चलिए अब आपके लिए मैं क्या करता हूं, इस प्रोग्राम को रन करता हूं। अब देखिए आउटपुट क्या आएगा। आउटपुट इज इवन एंड ऑड। ठीक है, चलिए अब क्या करता हूं, लेट मी मेक दिस वैल्यू समथिंग ऑड। अब देखना व्हाट विल बी प्रिंटेड। इट इज प्रिंटिंग ऑड। यस और नो? व्हाई इट इज प्रिंटिंग द ऑड? क्योंकि देखो रिमाइंडर ये वाली कंडीशन ट्रू हुई कि नहीं? यस और नो? ये कंडीशन ट्रू हुई कि नहीं? टेल मी। नहीं हुई। इसलिए उसने इस कोड को तो नहीं रन किया, इस कोड को उसने रन कर दिया। लेकिन जब मैं इसको इवन वाला केस दे रहा हूं तब भी ये क्या कर रहा है? इवन वाली कंडीशन सेटिस्फाई होती है, इसको भी रन कर रहा है, क्योंकि स्टिल दिस ब्लॉक इज अनकंडीशनल। तो मुझे क्या करना चाहिए था? अगर मैं चाहता हूं कि दोनों में से एक रन हो तो इसको भी एक कंडीशन में डालना चाहिए। तो देखो इसको मैं कंडीशन में क्या डालता हूं? रिमाइंडर नॉट इक्वल टू 0। गेटिंग माय पॉइंट? Yes. अब देखो ये आपका कोड परफेक्टली रन होगा। जब इसकी वैल्यू मैं फॉल्स दूंगा तो एक बार में या तो ये कंडीशन सेटिस्फाई होगी या ये, तो दोनों में से एक ही चलेगा। इट विल एग्जीक्यूट इवन। बिल्कुल सही है। नाउ लेट मी मेक इट ऑड। रन इट। वर्किंग फाइन? Yes. तो इसका Yes. मतलब फर्स्ट थिंग यू हैव लर्न, whenever you want to run any statement और ग्रुप ऑफ स्टेटमेंट, आप ये कंडीशन जो लगाते हो, ये ब्लॉक लगाने का पर्पस यही होता है कि आप इस ब्लॉक के अंदर जितने भी, अगर मैं इसके अंदर और भी स्टेटमेंट लिख दूं तो ये सारा पूरा ब्लॉक ही कब चलेगा? When this condition will be true।
तो ये इफ कंडीशन किसके लिए अप्लाई होती है? ऑन होल ब्लॉक। गेटिंग माय पॉइंट? यस और नो? यस। तो आपको ब्लॉक लगाने की आदत डालनी चाहिए। आप चाहो तो ब्लॉक नहीं भी डालो। एक रूल है कि अगर आपके कोड में इफ यू आर यूजिंग अ सिंगल लाइन, इफ के बाद अगर आप एक ही लाइन लिखते हो तो चाहो तो आपको ये ब्रैकेट लगाने की जरूरत नहीं है। ये देखो, तब भी कोई एरर नहीं देगा। इट इज अ फ्लेक्सिबिलिटी। क्यों दी गई? उसने बोला कि एक इफ के बाद वो जो पहली लाइन होती है उसको क्या मानता है? वो उसका पार्ट। गेटिंग माय पॉइंट? लेकिन आप हमेशा ध्यान रखना, आप स्टैंडर्ड फॉलो करो। हमेशा एक लाइन हो या 10 लाइन हो, ऑलवेज ट्राई टू क्रिएट द ब्लॉक। गेटिंग माय पॉइंट? किसी को डाउट समझ में आया? व्हाट इज द यूज ऑफ ए ब्लॉक? यस। और इसी को बोलते हैं कंडीशनल स्टेटमेंट। लेकिन यहाँ पे एक चीज बड़ी सी ऑड लग रही है। क्या? रियल लाइफ में आप मुझे बताओ, यहाँ पे दो ही पॉसिबिलिटी थी। मैंने बताया था, या तो मैंने बोला था या तो आपको प्रिंट करना है इवन हो या ऑड हो। तो आप मुझे बताओ, अगर कोई चीज इवन नहीं है, अगर कोई चीज इवन नहीं है तो इसका मतलब बचा हुआ केस क्या होगा? ऑड। यस और नो? यस, एग्जैक्टली। हम अपनी लाइफ में बोलते हैं ना कि या तो तुम मेरे घर आ जाओ, और नहीं तो बचा हुआ क्या होगा? मेरे घर मत आओ। यस और नो? तो जावा ने बोला कि अगर आपके पास दो ही कंडीशन है और आप एक को चेक कर रहे हो तो दूसरे को चेक करने की जरूरत नहीं है। आप अपने इफ के साथ यू कैन यूज अनदर फ्लेवर दैट इज कॉल्ड एल्स। ELSE, एल्स लिख दो। एल्स का मतलब होता है अगर ये ट्रू नहीं हुआ तो मैं अपने आप किस ब्लॉक में जाऊंगा? एल्स में। और इसमें वो लिख दो जो आप चाहते हो एल्स की कंडीशन में। तो आपको ये वाली कंडीशन दोबारा चेक करने की जरूरत नहीं है। ये तो बड़ा इलॉजिकल था ना? आप ही मुझे बताओ, क्या मैं किसी से बोलूं, क्या बोलूंगा? अगर मैं बोलता हूं कि मैं प्रदीप हूं, और अगर मैंने कंडीशन में चेक कर लिया प्रदीप हूं, और अगर प्रदीप हूं सही है तो सही है, नहीं है तो क्या बचेगा आंसर? प्रदीप नहीं हूं। क्या मुझे चेक करना चाहिए कि चलो चेक करते हैं कि तुम प्रदीप नहीं हो? आर यू गेटिंग माई पॉइंट? यस। So in this case, Java has given you a proper syntax for that. That is called if and else. If means if this condition is satisfied, control will go to this block. इस पे जाएगा, और अगर इस पे चला गया तो वो else पे नहीं जाएगा। लेकिन if this condition is false, the control will go to the else. तो ये इसको करने का एक प्रॉपर तरीका है। आप वैसे भी कर सकते थे, आप ऐसे भी, but this is the best way. Getting my point? यस। तो हमने यहाँ पे पढ़ा इफ एंड एल्स। इफ मतलब कंडीशनल ब्लॉक। आप चाहो तो 10 इफ लगा लो, 100 इफ लगा लो। When you have two condition, you should go if and else. Getting my point? यस। चलिए, अब मैं आपको एक कंडीशन और देता हूं ताकि आपका ये वाला पार्ट में थोड़ा सा कंप्लीट कर लूं। एक कंडीशन और देता हूं। अभी तो मैंने आपको स्टेटमेंट दिया, यू हैव टू प्रिंट द नंबर इवन ऑड। अगर कुछ सिनेरियो ऐसे आते हैं जहां पे मैं आपको एग्जांपल दूंगा, जैसे कि एक स्टेटमेंट मैं आपके लिए प्रिंट करता हूं, कंडीशनल स्टेटमेंट दूंगा। एक स्टेटमेंट है 1, मैं आपको बताऊंगा व्हाट आई एम ट्राइंग टू गिव यू द सिनेरियो। 1 2 3 4 and suppose I'm writing not valid। तो मैं आपको सिनेरियो दे रहा हूं। सिनेरियो क्या मैं बताता हूं। My scenario is that I will try to give you some input. मैं A में कुछ वैल्यू डालूंगा, ठीक है? I will try to give some value. अगर मैं वैल्यू डालता हूं इसमें 1, तो मेरा क्या प्रिंट होना चाहिए? 1. If I will give the value 2, which statement should be printed? 2. 2. If I give the value of A equal to 3, it should print 3. If I give the value 4, it should print 4. और इसके अलावा अगर कोई भी इसके अलावा कोई नंबर आता है, मींस 4 के अलावा कोई भी नंबर आता है, तो it should print not valid. Getting my point? Yes. अब इसका प्रोग्राम कैसे लिखा जाए? अगर मैं इस समय रन करूंगा तो आपको ही पता है एवरीथिंग इज अनकंडीशनल, एवरीथिंग विल बी प्रिंटेड। तो कंडीशनल तो बनानी पड़ेगी। कैसे बनाते हैं? कंडीशन मुझे पता है। दिस ब्लॉक इज गोइंग टू बी रैप्ड। फर्स्ट ऑफ ऑल कैसे रैप करते हैं? रैप किया, लेट मी रैप इट एंड मेक ए कंडीशन। क्या? इफ। हमको पता है क्या है? वेरी वेरी सिंपल। इफ A इक्वल टू 1। यस और नो? यस। अब देखो, A की वैल्यू ये तभी प्रिंट होगा जब A की वैल्यू प्रिंट होगी। बाकी अभी अनकंडीशनल है, जस्ट रन इट। देखो 1 तो नहीं प्रिंट हुआ ना? तो ऐसे ही आपको क्या करना पड़ेगा? यू कैन डू वन थिंग। आप हर किसी में क्या करो?
कंडीशन लगा दो, if a equal to 1 print this one, if a equal to 2 print this condition. कर सकते हैं, yes or no? ये देखो मैं लिखूंगा a equal to 2 तो ये प्रिंट हो जाए, yes or no? yes, ऐसे ही कर करके मैं सारी लिख सकता था। फिर से वही कंडीशन आती है कि क्या मेरे पास कोई ऐसा वे है कि इसमें से, क्योंकि मुझे क्या पता है, आप मुझे बताओ, एट ए Yes. टाइम ओनली वन कंडीशन विल बी सेटिस्फाइड। एक बार में एक ही वैल्यू क्या 1 और 2 दोनों हो सकती है, या तो 1 होगी या 2 होगी, एक बार में वैल्यू एक ही सेटिस्फाई होगी, यस और नो? yes, तो यहाँ पे कंडीशन ये आई कि मेरा कंडीशन होता क्या, अगर मैं एक कोड लिखूंगा, सो इट विल गो टू दिस लाइन, ये चेक करेगा एक ही वैल्यू 1 है, ठीक है 1 है, तो 1 इसको नहीं मिली तो इसको अगली कंडीशन पे जाना चाहिए, ठीक है। लेकिन अगर आप मुझे बताओ, अगर मैं यहाँ पे 3 लिखूं और ये 3 सेटिस्फाई होके प्रिंट हो गया, तो क्या इसे आगे जाना चाहिए था कंट्रोल? नहीं, क्योंकि अगर कंडीशन वही सेटिस्फाई हो गई तो मैं बार बार चेकिंग क्यों कर रहा हूं? सेम थिंग इन द केस ऑफ इफ एंड एल्स, इफ इज ट्रू वी शुड गो टू द एल्स, आगे चेक करने की जरूरत नहीं है। बट हियर द कंडीशन इज दैट कि मेरे पास केवल 2 कॉम्बिनेशन नहीं है, वी हैव मल्टीपल कॉम्बिनेशंस। तो देखो यहाँ पे एक नई चीज पिक्चर में आई, दैट इज कॉल्ड इफ एल्स इफ। इफ मतलब होता है अगर ये कंडीशन आपकी ट्रू है, बहुत सही, इफ इट इज ट्रू रन इट। अगर ये सही नहीं है तब आपको इसको रन करना है, अगली वाली को। तो यहाँ पे इफ ऐसे ना यूज करके इसी के कॉम्बिनेशन में यूज करते हैं एल्स इफ। और एल्स इफ का मतलब है, आप इंग्लिश में एल्स इफ का मतलब जानते हो, एल्स इफ मतलब अगर ये चीज सही नहीं है तो यू शुड गो विद द एल्स इफ। गेटिंग माई पॉइंट? yes, तो इसका बेनिफिट आपको बताता हूं क्या होता है। बेनिफिट ये होता है कि अगर ये चीज सेटिस्फाई हो गई, सो इट विल नॉट गो टू द नेक्स्ट, इट विल नॉट गो टू द नेक्स्ट स्टेटमेंट। अगर ये सेटिस्फाई नहीं हुई तभी ये जाएगा। तो आपको यू शुड राइट एवरी कंडीशन इन द एल्स इफ, एंड दिस इज नोन एज एल्स इफ लेडर। a equal to 2, a equal to 3, here you should write 3. Here a equal to 4, you have to write 4. अब जब सारी कंडीशन हो गई तो आपकी बस्ती क्या है, अगर इनमें से कोई भी सेटिस्फाई नहीं हुई तो बची हुई क्या होनी चाहिए, नॉट वैलिड, यस और नो? yes, तो इन दिस केस लास्ट स्टेटमेंट कैन बी सिंपली Else. एंड दिस कॉन्सेप्ट इज नोन एज एल्स इफ लेडर। अब इसको लोग क्या करते हैं, दे ऑलवेज ट्राई टू मेक हाईलाइट, भाई मैंने इफ पढ़ा दिया, मैंने एल्स इफ पढ़ा दिया। ऐसा कुछ भी नहीं है, इट इज एक्चुअली अ वेरी वेरी सिंपल थिंग। एक इफ है, इसको बनाया भी कैसे गया था आपको मैं दिखाऊंगा, बड़ा इंटरेस्ट आएगा आपको। देखो इफ है, अगर मैं इसके यहां से इस एल्स को हटा दूं, ध्यान से देखना, तो क्या ये अपने आप में एक अलग ब्लॉक दिख रहा है? yes, इन्होंने सिर्फ ये किया, कहा कि इस ब्लॉक को इस ब्लॉक से जोड़ते हैं, यहाँ पे एल्स लिख दो और ये देखो ये इफ है, ये इसके आगे आ जाएगा, बन गया ये चीज। ऐसे बना दिया इन्होंने और आपको बोल दिया एक नया कॉन्सेप्ट है। नया कॉन्सेप्ट नहीं, दे हैव जस्ट मेक अ थिंग कि जहां आप इफ कीवर्ड को यूज कर रहे थे, यू हैव मेड यूज एल्स इफ, बाकी तो कंडीशन दे दी आपने, एंड व्हेन यू आर गो टू द लास्ट कंडीशन सिंपली गिव एल्स। तो एक्चुअली कंडीशनल स्टेटमेंट सिर्फ एक ही होता है, इफ एल्स एल्स इफ। गेटिंग माय पॉइंट? अब आप yes, देख लो कि इसका बेनिफिट क्या है कि आपका इफ द कंडीशन इज सेटिस्फाइड हियर, यहाँ पे सेटिस्फाई नहीं हो रही है, 3 है, यहाँ पे आएगा, देन कंट्रोल विल कम टू हियर, यहाँ पे सेटिस्फाई हो गई, नाउ इट इज नॉट गोइंग टू एग्जीक्यूट रेस्ट ऑफ द स्टेटमेंट। तो इससे परफॉर्मेंस क्या होती है, इंक्रीज होती है। गेटिंग माय पॉइंट? सर एक डाउट है। बताइए। सर जैसे आप बोल रहे हैं कि इफ में अगर कंडीशन इज नॉट सेटिस्फाइड देन इट शुड मूव एल्स इफ, है ना? हाँ जी, अगर इफ right. द कंडीशन इज नॉट सेटिस्फाइड, बट ये जो केस है इसमें a equal to 1 मतलब लिखा हुआ है, कोई भी डिजिट प्रिंट करा रहे हैं सिर्फ हम लोग, है ना? तो कंडीशन तो सेटिस्फाई हो ही रही है ना, मतलब क्या समझ नहीं कंडीशन आया। का कंडीशन का सेटिस्फाई का मतलब कि क्या इसमें क्या a की वैल्यू 1 है? कंडीशन हमारी क्या है, a की वैल्यू अगर 1 है तो ये सही बात है, a की वैल्यू 1 है कि नहीं करंट सिनेरियो में? नहीं। नहीं अच्छा, वो तभी equal to 3 तो मैंने देखा ही नहीं, सॉरी। यही तो आपको देखना है, आप इसको मान सकते हो, मैंने यही तो बोला आपसे, योर कंडीशन इज दैट यू कैन अज्यूम दैट हियर यू आर गिविंग सम इनपुट।
आप यूजर से कोई इनपुट ले रहे हो और इनपुट के बेस पे आप उसे बताओगे कि आपकी कौन सी चीज, आप इसे मान के चलो एक ऐसा प्रोग्राम है आपने बनाया अपने क्लाइंट के लिए कि आपका क्लाइंट को इनपुट देगा, आप उसे बताओगे कौन सा नंबर उसने प्रिंट किया। तो आपने बोला उसने अगर आपको इनपुट 3 दिया तो आपने चेक कराया ए की वैल्यू 1 है, नहीं ये नहीं, 2 है नहीं, 3 है, आप तुरंत क्या प्रिंट करके दोगे 3। आपका कोई भी नंबर ऐसा जो इस रेंज में नहीं आता, टेक द एग्जांपल ऑफ 6, तो कोई भी कंडीशन सेटिस्फाई नहीं हुई, ए 1 है नहीं, ए 2 है नहीं, ए 3 है नहीं, ए 4 है नहीं, तो आपको आपने कंडीशन ही बोली है कि 4 के अलावा कुछ भी हो तो इनवैलिड, तो देखो चला जाएगा एल्स में। इज इट ओके राबिया? Yes, sir. Better to. I should be on mute because kids are making noise. No, that is okay. I already promised you. Don't worry about that. It is your right. We can tackle it. ठीक है, आप क्वेश्चन पूछो, कोई बात नहीं। चलो बताइए, कोई डाउट है आपको? नहीं सर, हो गया, थैंक यू। ठीक है चलिए। जब कोई क्वेश्चन नहीं पूछा है, यू कैन बी म्यूट ऑन दैट, बट इफ यू हैव a really need a question, there is no hurdle. कोई भी प्रॉब्लम, कोई बात नहीं। I know that sometimes kids are playing in the background, तो देखना, but the question important, तो आप 2 मिनट के लिए पूछ सकते हैं। ठीक है चलिए। Anybody else have any question? अश्विनी? नो सर। अश्विनी बहुत शांत लग रहे हैं मुझे, और विवेक भी बहुत शांत है। विवेक, you have any doubt विवेक? No doubt sir, no. Great. So again I am saying that because देखो बार बार मैं ऐसा बोलूंगा तो I can't do, मैं इतना टाइम वेस्ट करता हूँ अगर मैं बार बार बोलूंगा। So again I am saying that हमेशा मैं इसको स्टेटमेंट बोल रहा हूँ, सबके सामने बोल रहा हूँ, यू कैन काउंटर ऑन मी कि प्रदीप बार बार बोल रहे हैं कि आपके पास कोई भी डाउट हो, डोंट कीप द डाउट विद यू, जस्ट गिव दैट डाउट टू मी। और मैं बार बार बोल रहा हूँ, आई विल नेवर बी फ्रस्ट्रेटेड। ठीक है, मैं होता ही नहीं हूँ, मुझे आदत ही है। आप मेरे कोई वीडियो उठा के देखना, एक टॉपिक को 10 बार बोलता हूँ, लोग ये बोर हो जाते हैं कि प्रदीप एक लाइन को 10 बार बोलता है। रीजन इज दैट कि आपके दिमाग में वो लाइन इतनी छप जानी चाहिए ना कि मैं 10 बार बोलूं तो आपको रिवीजन भी करने की जरूरत ना पड़े। आर यू गेटिंग माय पॉइंट? तो डोंट हेजिटेट मी, वी हैव जस्ट कंप्लीटेड 3 सेशंस, वी आर गोइंग इन द सेम वे। जब तक आपको समझ में नहीं आएगा तब तक हम उसे करते रहेंगे। वी हैव टारगेटेड जावा फॉर 1 and you can say 1.5 month, it goes 2 months, that is okay, but your Java should be good. एक बार जावा अच्छी हो गई, ट्रस्ट मी, यू don't need to come to any online session. आपको किसी भी ऑनलाइन सेशन को ज्वाइन करने की जरूरत नहीं पड़ेगी, वरना क्या होगा, कल को सेलेनियम 6 आ जाएगा, आप कहोगे प्रदीप के पास चलते हैं पढ़ने, तो प्रदीप कहेंगे ये तो गलत बात है। अगर आपकी जावा स्ट्रॉन्ग है, यू कैन लर्न एनी वर्जन, यू कैन लर्न एनीथिंग। गेटिंग माय पॉइंट, यस और नो? Yes. तो आपके पास अगर ज्यादा पैसे हो तो आप बार बार मेरे पास आना, नहीं है तो मैं आपको एडवाइस दूंगा कि मेरे साथ सीरियस होकर जावा पढ़ो। ट्रस्ट मी, मेरे साथ जिसने भी जावा पढ़ी है, मोस्टली यू कैन सी अराउंड आई हैव कंप्लीटेड 2000 पीपल, 2000 लोग मैंने पढ़ा लिए हैं। और द पीपल हु इज जस्ट सिंक विद मी, दे कैन इजीली लर्न एनीथिंग इन जावा। बहुत अच्छा काम कर रहे हैं, आई विल शो यू। ठीक है, बट यू हैव टू मेक एफर्ट फ्रॉम योर साइड। मैं आपकी क्वेरी सॉल्व कर सकता हूं, मैं आपके लिए प्रैक्टिस नहीं कर सकता। दैट इज फेयर एनफ? Yes. Yes. ठीक है, सो आई एम बाइंडिंग द सेशन एंड अगेन आई एम सेइंग दैट अभी भी हमारा कोर्स बहुत ज्यादा नहीं हुआ है, ट्रस्ट मी, वेरी वेरी सिंपल पार्ट वी हैव कवर्ड। सो यू कैन डू वन थिंग, यू हैव 5 days, प्लीज रिवाइज इट। एनी पॉइंट ऑफ टाइम यू आर फेसिंग एनी प्रॉब्लम, जस्ट पिंग ऑन द व्हाट्सएप। और मैं एडवाइस दूंगा सबको कि जब भी कोई क्वेश्चन पूछेगा, ट्राई टू गिव द आंसर। Maybe you are giving the wrong answer, बहुत कम चांस है कि wrong answer दो, because we have just covered the limited। लेकिन अगर कोई आंसर देगा तो you are trying to practice for your interview। एक दूसरे की प्रॉब्लम का आंसर दो। At any point of time I feel that you are giving the wrong answer or you are not able to give the answer, I will jump into the WhatsApp group। ठीक है, but try to make practice, try to utilize your time। Everybody is busy, I know that everybody is busy in their daily life, in their professional life, लेकिन 1-2 घंटा you can just dig for your career। 1-2 घंटे तो आप अपने करियर के लिए, वो क्या बोलते हैं ना, गड्ढा खोद ही सकते हो। तो you can learn so many things। ठीक है, should I bind the session now? Yes. Yes. हाँ जी बताइए। Anybody asking? Oh, anybody was asking anything? Okay, great. So I'm binding the session. Thank you. Have a nice day. Thank you. Have a good day. Okay, Bye. bye.